Okay, sorry for a little bit late. Yeah, actually, I was having some mic problem. That's why I got late, but now it's resolved. Okay, so I haven't even started yet, so I have just started right now. ठीक है? तो किसी को अगर प्रॉब्लम थी, so now it has been resolved. अभी भी questions हैं आप लोगों के, तो now you won't face an issue. All right. Hello everyone, Assalamu alaikum. So welcome back to our 20th workshop of Machine Learning Zero to Hero. What's exciting point of today's workshop is today we are stepping towards the second part of machine learning, or you can say the second major half of machine learning. अब तक हम पढ़ते आ रहे थे supervised machine learning और unsupervised machine learning, but right now, okay, noise is high. All right, so wait a second. Let me see that if the noise has been resolved or not. Okay. Let me know again, okay? If my audio is getting trouble or something else. So, welcome to this workshop. Today, what we're gonna do, we just learn about small things regarding neural networks. आज के दिन कुछ खास या कुछ बहुत बड़ा हम अंजाम ही देने वाले, because हम कल ही परसों ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना चुके हैं. But soon in coming week, we're gonna make two different big steps in this left time. हम दो मेजर स्टेप ले चुके थे, क्लासिफिकेशन में ले लिया था हमने, एक हम इसमें ले चुके थे क्लस्टरिंग के अंदर, अब एक न्यूरल नेटवर्क्स में भी ले लेंगे और एक आखिर में एक रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर भी ले लेंगे. So what is why I'm so excited about this program, because this program is specifically powered by Google AI itself. मतलब Google AI already know कि Google AI खुद कभी भी जल्दी से कोई प्रोग्राम पावर नहीं करता, but that's explorable program powered originally by Google AI. आज हम पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क्स. सो लेट मी मूव towards my slides. All right, so I hope my slides are clearly visible. So welcome back again, and then coming to before starting neural networks, I simply want to say one thing जो कि मैं usually लोगों को कहता हूँ, और ये जस्ट मैंने वर्कशॉप स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले ही इसको मैं यहाँ पे सेट किया, and it says that don't you dare call yourself ML engineer if you can't understand neural networks. ये मैं क्या emphasize करने की कोशिश कर रहा हूँ. Usually what students make a huge mistake, they learn a lot of models in classification, simple classification and simple clustering. What you have learned till yet is not even the hello world of entire AI. ठीक है, machine learning is itself you can say hello world of AI. बाहर के अगर हम बात करें या फॉरेन कंट्रीज में हम बात करें, सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन विच मशीन लर्निंग इज बीइंग टॉट एट ऑर्डिनरी लेवल्स, लाइक ग्रेड 10 के अंदर या ग्रेड 9 के अंदर वो मशीन लर्निंग पढ़ चुके होते हैं. हाउ? बिकॉज देयर सब्जेक्ट्स आर सो लिंक टू ईच अदर. लाइक जो वो मैथ्स पढ़ रहे होते हैं वो वही पढ़ रहे होते हैं जो हम लोग डिस्क्रीट मैथ्स, अगर हम देखें डिस्क्रीट होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस हो गई, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे नेम्स हैं जिससे हमारी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स एनरोल होते हैं. थोड़ा थोड़ा फर्क होता है यूनिवर्सिटी के अंदर. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर ऑलरेडी लर्न इन देयर ग्रेड 10 ग्रेड 11. ठीक है, इसमें पढ़ चुके होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दीज थ्योरीज इन कंप्यूटर साइंस. हम मशीन लर्निंग में वीक क्यों रह जाते हैं? बट बिकॉज वी डोंट नो द बैक साइंस ऑफ मैथमेटिक्स. हम माइंड उस तरह नहीं लगा पाते जिस तरीके से माइंड लगाना चाहिए एआई के अंदर, बिकॉज एआई इज ऑल मैथमेटिक्स. अब आप न्यूरल नेटवर्क्स में आओगे ना, तो अब आपको असल मैथमेटिक्स दिखेगी, अब जिसमें सारा गेम ही मैथमेटिक्स का होगा. बट आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस, क्योंकि समझाना इज ऑल्सो एन आर्ट. एक्सप्लेनिंग हार्ड थिंग टू सिंपल चंक्स is also a great art. So I will try my best. लेकिन why neural network assume in the power of machine learning, not in the deep learning? Because deep learning से भी तो आप बहुत दूर है. Neural network itself a part of machine learning. अगर आप कभी जाएं गूगल की वेबसाइट्स पे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स पे, स्पेसिफिकली गूगल, आई हैव एक्सप्लोर्ड देयर एवरी वेबसाइट एंड आई एम मोर इंगेज्ड विद दोज गाइस. तो वहाँ पे आप देखेंगे उनके कोड लेवल्स में, देखेंगे उनके टेंसरफ्लो के लेवल में, देखेंगे
दे से दीज कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम एज मशीन लर्निंग। वो कंप्यूटर विजन का अगर आप कोड लैब्स देखें ना उनकी प्री डिफाइंड जो होती हैं, सो यू विल सी बेसिक कंप्यूटर विजन विच दे आर नेमिंग एज मशीन लर्निंग। वाई? बिकॉज ये सब मशीन लर्निंग का पार्ट है न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग कब आती है और किस चीज़ को हम डीप लर्निंग कहते हैं हम आगे जाके देखेंगे, जब न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हम बिल्कुल गहराई में जा चुके होंगे। अगर आप एक परफेक्ट डायग्राम देखो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की, तो पाकिस्तानी हमें डायग्राम क्या दिखा रहे होते हैं, इंडियंस में क्या डायग्राम दिखा रहे होते हैं, दिस इंटायर साउथ एशिया के मशीन लर्निंग एआई के अंदर मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग है। बट एग्जैक्टली दैट्स नॉट द केस। अगर मैं थोड़ा सा उसको सुपरवाइज करूँ, वैसे तो बहुत डिफरेंट डायग्राम होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर सुपरवाइज करूँ तो मशीन लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स है, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग के अंदर देयर आर मल्टीपल पार्ट्स लाइक natural language processing, computer vision, signal processing, Q learning. Q learning is a part of reinforcement learning. पहले मैंने सोचा कि मैं reinforcement learning का टेस्ट दे दूं, Q learning का एक इंट्रोडक्शन दे दूं, बट आई थॉट नो दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और आप उसको एक अपनी लाइफ से वैसे ही अपार्ट कर दोगे, यार नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। दैट इज व्हाई आई जस्ट स्टार्टेड फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क्स। सो लेट्स सी व्हाट दिस मिस्ट्री इज। ये इतना बज़वर्ड है न्यूरल नेटवर्क, क्या है ये? some people say this artificial neural network is the seed। आगे आप सुनेंगे नाम जो ऑलरेडी आप जानते होंगे, लाइक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है ना, जनरेटिव आर्बिट्रेशन नेटवर्क्स जिसको हम गैन्स बोलते हैं, ऑटो इनकोडर्स हैं। दीज आर लाइक ट्रीज, और वो किससे बन रहे हैं? फ्रॉम दीज सीड्स। और सीड्स क्या हमारे पास? न्यूरल नेटवर्क हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट न्यूरल नेटवर्क इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग इटसेल्फ। वही पूरा का पूरा सिस्टम होगा, बस हमारे पास हो क्या रहा होगा कि जहाँ पे हम लोग रैंडम फॉरेस्ट या यू कैन से डिफरेंट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हमारे पास वो यूज़ कर रहे थे, विच आल्सो बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल एल्गोरिथम। नाउ वी विल इट्स विल बी लाइक दैट वी आर यूजिंग मल्टीपल एल्गोरिथम एट द सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम ये काम कर रहे होंगे। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट लर्निंग रेट डीके, gradient descent algorithm, you can also say optimizers, activation functions. There are so many things we can explore within few days. So today my major target is activation function, and let's see what is going to be. So before that, अगर कोई भी किसी को कोई questions हो, so साथ साथ drop करते जाइएगा। I'll be giving the every single, I'll be resolving every single thing by time Q&A खोलता रहूँगा, and I'll be resolving thing. So let me confirm again if my sound has been cleared or not. Okay, तो ऐसा ना मैं बोलते जाऊँ और आवाज ना आ रही हो। Okay, so this is the neural network। हमने इंटरनेट पे देखा होगा, इसकी काफ़ी सारी इमेजेस देखी होंगी। इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है, बट व्हाट इज एक्चुअली दिस? हमारे पास फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में हम अब तक क्या देखते आ रहे थे कि मॉडल के अंदर हम लोग डेटा देते हैं एक्स का, ठीक है, और डेटा जाता है, एल्गोरिथम उसके ऊपर अप्लाई होता है, एंड देन वी गेट द आउटपुट। इज दैट द केस? यही होता है ना? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको हमने थोड़ा सा इनहांस कर दिया। इनपुट आ रहा है, वो स्प्लिट हो गया डिफरेंट, ये आप देखें, अगर यहाँ पे इनपुट लेयर देखें, यहाँ पे मल्टीपल न्यूरॉन्स में स्प्लिट हो गया। अच्छा, ये थ्योरी कहाँ से डिराइव हुई थी, किसका डिराइव हुई थी, सबके भी बताऊंगा, एक शॉर्ट इंट्रो दूंगा, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस नेटवर्क। यहाँ पे हमारे पास वो डाटा आया इनपुट के अंदर इन डिफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन से आप देख रहे हो, अब एक उसका पार्ट उसने विद सम सॉर्ट ऑफ वेट यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया। दीज आर दी हिडन लेयर्स। Each hidden layer has specific algorithm और specific activation function। जो एक्टिवेशन फंक्शन जो डेटा को यूँ कह लें कि किसी पर्टिकुलर शेप में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसको आगे जाके मुझे समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। पर्टिकुलर शेप में लाने की कोशिश कर रहा है, किसी फॉर्म में लेके आना चाह रहा है। और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाना, जो आर्ट जिसे हम कहते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं होती। इसमें आप अपना न्यूरल आर्किटेक्चर डेवलप करते हो। इसमें ये नहीं कि रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई कर देना, आपने अपना न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर डेवलप करा है, अब उसके बाद आप डिफरेंट एल्गोरिथम मिक्स करके लगा रहे होते हो, एंड देन वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं, और उसके बाद तो जा रहे होते हैं आउटपुट लेयर पे। आउटपुट लेयर पे आप यूजुअली लगा रहे होते हो, फॉर एग्जांपल लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, सो इट विल बी टर्निंग द डेटा इनटू लीनियर शेप। तो ये चीज़ें हैं जो ये बज़वर्ड्स हैं, जिसको अभी हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि क्या बज़वर्ड्स हैं। अब
ये थ्योरी कहाँ से आई है, ये कहाँ से अंडरस्टैंडिंग हमारी आई है। अब यहाँ पे एक सिंपल, अभी इसको छोड़ दें, ये न्यूरल नेटवर्क किसने बनाया, कब बनाया, मुझे सही से याद नहीं किसने बनाया, बट आई स्टिल रिमेंबर व्हेन दे वर बिल्ड। इनकी थ्योरी कब लिखी गई थी? इट वाज आइडिएटेड इन 18th सेंचुरी। इतने पुराने हैं ये, ठीक है। मशीन लर्निंग उससे भी ज़्यादा पुरानी है, जो आज भी हमको कभी बहुत सारे लोगों को हार्ड लग रही होती है, कभी सम टाइम मुझे भी लग रही होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इतनी पुरानी है। न्यूरल नेटवर्क्स आल्सो बिल्ड इन द 18th सेंचुरी। कुछ बन गए थे या थ्योरी इन प्रोसेस थी, फाइनलाइज हो गए थे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, लाइक 1825 आई गेस, ठीक है ना, 19th सेंचुरी में फाइनलाइज हो गए थे। देन दे स्टार्टेड टू गेट मोर एनहांस 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एनहांस हुए। बैकग्राउंड क्या था? थिंक लाइक अ कंप्यूटर। अब एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं, व्हेन देयर वाज नो सच कंप्यूटर, व्हाई दीज वर थ्योरी कैन पॉसिबल टू मेक? या गुड क्वेश्चन। ये मैथमेटिकल थ्योरीज थी, लाइक रिसर्च होती है ना, रिसर्च जो हो रही होती है 100 साल रिसर्च होने के बाद उस पर 100 साल और लग जाता है इम्प्लीमेंटेशन करने पे। ये इन्वेंशन एक बंदे का ड्रीम नहीं होता, एक बंदे का ड्रीम होता है, इम्प्लीमेंट कोई और करके जाता है। अब हो क्या रहा होता है इस पे, फॉर एग्जांपल कि जिसने ये न्यूरल नेटवर्क का सपोजिशन ली थी, उसने कहा था दैट देयर कैन बी एन एल्गोरिथम फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ ह्यूमन ब्रेन कैन वर्क। ये उस वक्त बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, बट देन इट प्योरली ट्रांसफॉर्म इनटू प्योर मैथमेटिक्स कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक हाथ है, मैंने बर्फ के ऊपर रख दिया है, सो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नेगेटिव के अंदर, लाइक टेम्परेचर -25 है, तो मेरा एकदम हाथ यूं आ जाएगा, यूं बिल्कुल झटका लग के। क्यों? बिकॉज दीज आर रिसेप्टर्स, दीज आर रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम दोस आइस, ठीक है ना, फ्रॉम दैट आइस वो सिग्नल्स आ रहे हैं कि भाई ठंडा है, ठंडा है। फौरन मेरे न्यूरॉन्स में गए, मेरे न्यूरॉन्स ने कोई किसी एक्टिवेशन फंक्शन के तहत प्रोसेस किया उसको और कहा कि ये रिस्पॉन्स दो, तो फौरन हाथ हटा लो, ठीक है, हो गया। अब मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ बर्फ रखी है और मुझे उस पर हाथ रखना है चाहे कितना ही ठंडा हो। तो अब अगर ये रिसीव कर भी रहे होंगे ना ठंडा, तो उसके बाद अब डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है कि नहीं, इस पर हाथ रखना है until unless start hurting you। अगर एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाए, आपका हाथ फ्रीज होने लग जाए, एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाए, आपने हाथ उस पर रखना है एंड यू आर कीपिंग योर हैंड टू दैट आइस, ठीक है। फिर आप हटाते हो, देन यू विल सी कि आपका हाथ फ्रीज हो गया है। then neurons will again give generate an output कि यार आपका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, now start rubbing it ताकि आप थोड़ी हीट जनरेट हो। how these are performing, it's all neurons। हमारे ब्रेन में there are, अगर smallest part की बात की जाए so it's neuron and there are millions and billions of neurons in our brain जो कि सारे एक साथ चल रहे होते हैं, जितने इसमें होते नहीं है यूजुअली कंप्यूटर के अंदर। that is why that's the perception when it involved into computer science। इसकी जो बेस चीज़ थी ना, ये इम्प्लीमेंट होने की पॉसिबिलिटी कब पैदा हुई? जब हमने देखा कि दैट कंप्यूटर्स विद ट्रांजिस्टर्स कैन बी पॉसिबल। जब प्रोसेसिंग पावर बढ़ती चली गई तो पहले मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पॉसिबल होते चले गए। जब न्यूरल नेटवर्क के लिए इतने इतने एबल हो गए सिस्टम के, हाँ अब न्यूरल नेटवर्क डील कर सकते हैं, देन न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट इन्वॉल्विंग दिस एरा। नाउ दिस इज द वेरी नेक्स्ट एरा जब न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट द रियल इम्प्लीमेंटेशन इन लैब्स। अभी बिजनेस में तो अभी आया नहीं है। उसके बाद देन वी थॉट कि अगर हमारे पास और कंप्यूटेशन पावर हो, then this major thing which is now known as artificial intelligence can be the most crucial thing which can make a replica of human being। ये thought वहीं से चला था कि क्योंकि because this is actually working like human being, machine learning is never working like a human being but neurons actually working like a human being। अब उसको ह्यूमन बीइंग जैसा बनाने के लिए यू हैव टू कंपनसेट विद कंप्यूटेशन पावर। ऑफ कोर्स आपके पास कंप्यूटेशन पावर इतनी होनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे नहीं हो पाता, बिकॉज देयर आर सर्टेन ऑप्टिमाइजेशन, सर्टेन लॉज। आगे जाके हम देखेंगे। व्हेन फॉर एग्जांपल इफ आई एज अ ह्यूमन कैन थिंक मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। अगर मैं बात करूँ 50 ईयर्स पुरानी, तो वहाँ पे हमारे पास शायद 4 किलोबाइट की रैम भी ना हो, ठीक है, बिट्स के ऊपर रैम थी। सोचो आज के बाद अगर हम 50 ईयर्स के बाद जाके अगर बात करें, so how much system will be going to be powerful। that's why it's a perception that if neurons will reach to this limit of human brain के जितना human brain में neurons हैं,
कंप्यूटर्स भी उस लिमिट तक पहुंच गए, may be possible that AI can be the threat to entire human destiny, or maybe AI can be, you can say, have some feelings for others as well, because इतनी सारी चीजें प्रोसेस करने के लिए we need some sort of thing. Until unless उसमें AI में feelings नहीं आती, AI can never be the threat for us. AI can only be the threat for us if they reach towards the feelings. अब इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें या इसकी हेलो वर्ल्ड की बात करें इस थॉट की, सो वी कैन सी इन न्यूरलिंक कंपनी which has been led by Elon Musk. और Elon Musk क्या कर रहा है उसके अंदर, he recently announced a chip which can be placed in any human brain, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड चिप है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं देती, एंड वी कैन रीड द डाटा ऑफ योर ब्रेन एंड वी कैन प्रिडिक्ट दैट व्हाट यू गोना डू इन अपकमिंग टाइम्स. तो इतना कुछ तो अभी हो चुका है. सो जस्ट प्रिडिक्ट बाय योर थॉट्स कि दीज इन्वेंशंस आर बीइंग मल्टीप्लाइड डे बाय डे. They are not increasing, they are actually multiplying. That is why neural networks played a huge role के क्या कहते हैं इन ग्रेट इन्वेंशंस. अब बात करते हैं न्यूरल लेयर्स की. हमारे पास लेयर्स हैं न्यूरल नेटवर्क की. इसको थोड़ा मैं लेमन में समझाने की कोशिश करूंगा. आई होप के लेमन में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ लीफ. आई गॉट दिस पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट एंड दिस इज अ लीफ. अब इसमें हमारे पास 30 बाय 30 पिक्सल्स हैं, राइट, जैसे कि हमने पहले बात की थी. अब एक पिक्सल जो है ना एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ दैट बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. अब हमारे पास एक पिक्सल जो है ना एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स वैल्यू है. आप एक आगे जाके ना एक टर्म सुनेंगे, दैट्स अ टेक्निकल टर्म इन एआई, स्पेसिफिकली जार्गन कह लें, कि वी हैव इंडेक्स ऑल द इमेजेस, वी हैव इंडेक्स ऑल द ऑडियोज. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑडियो सैंपल्स मौजूद थे. अब एआई में ट्रेन करने के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल में ट्रेन करने के लिए, कहीं भी ट्रेन करने के लिए, यू हैव टू मेक इट इन अ इंडेक्स फॉर्मेट, मतलब मैट्रिक्स बनाना है उसका. So we call it as that I have indexed all the audio samples, all the images. तो industry में ये word बहुत ज़्यादा emphasize use होता है. So if you ever went to industry or ever perform freelancing in AI, so you will usually listen this thing, because indexing is the most complicated part when it comes to dealing with images, text and you can say audio. तो यहाँ पे हमारे पास okay. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू एक डिफरेंट आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. अब वो किसी कलर के अंदर हो, कुछ स्पेसिफिक कोई कलर जो हो किसी स्पेसिफिक वैल्यू में प्रेजेंट हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है. अब वो हमारे पास इसमें इनपुट लेयर के अंदर आ गया, ठीक है. हमने एक्स दिया, वो एक्स जा रहा है स्प्लिटेड हो उसकी मर्जी, जैसे मर्जी ले उसको, ठीक है ना. अब उसने एक्स जगह जगह ले लिया भाई, x1 में भी आ गया, x2 में भी आ गया, x3 में भी आ गया, x4 में भी आ गया. अब क्या करेगा ये, अब यहाँ पे भी हमने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई नहीं करा है. ये हमारा हम लोग नेक्स्ट डे उसको मजीद डिटेल में समझेंगे. अब यहाँ पे समझने कि यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है, इधर भी हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है, इधर भी हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है, इधर भी, और इनपुट लेयर में भी लगा हुआ है, लाजमी लगा होगा. इनपुट लेयर में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल रीलू लगा दिया. जब कुछ नहीं चल रहा होता तो लोग यूजुअली रीलू लगा देते हैं, ठीक है. और हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो लीफ होगा या स्टेम कह लें, क्योंकि अगर मल्टीपल क्लासेस होती है तो उसके लिए भी हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं. तो हमारे पास सिर्फ दो क्लासेस हैं अभी इस वक्त. यहाँ पर आया, उसने अपने एल्गोरिथम के तहत ट्रांसफॉर्म किया और इस अकॉर्डिंग टू दिस वेट यहाँ भेज दिया. फिर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेट उसने यहाँ भेज दिया, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेट उसने यहाँ भेज दिया. अब वो क्या कर रहा है, अगर उसको लेबर में समझे, मेरे पास एक बास्केट है इन विच वी आर हैविंग सम फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मैंगोज एंड एप्पल. मैंने एप्पल को बोला कि चलो तुम खा लो, ग्रेप्स तोड़ दिए तो थोड़े उसको दे दिए, थोड़े से उसको दे दिए, मैंगो थोड़े से उसको दे दिए, थोड़े से उसको दे दिए, ठीक है ना. मैं ये काम कर रहा हूँ. फिर क्या हो रहा है, अब हर जो चीज़ मैं दे रहा हूँ सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन किसी एक ही चीज़ का पार्ट है. अब वो सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक वेट कैरी कर रहे होंगे. अब वेट क्या होता है वो भी हम आगे जाकर देखेंगे. एक्स के साथ वो एक वेट कैरी कर रहे होंगे. अब वो जो वेट, एक बायस फैक्टर होता है, एक वेट फैक्टर होता है, जब भी हम देखेंगे. अब हर लेयर के अंदर एक वेट फैक्टर है. अब वेट वजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेट में उसकी स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूँ, या स्पेसिफाइड उसकी रिप्रेजेंटेशन इन इंडेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ. तो हर उसका एक स्पेसिफाइड एक वेट है. फिर वो मल्टीपल फैक्टर्स में इन्वॉल्व होता है. अब मैंने एक लेयर और अप्लाई कर दी,
ठीक है ना, लेयर ए बी सी कोई भी नाम दे दो, फिर वो उसको अपनी मर्जी से झेलता है, फिर उसको और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है अंदर, फिर जाके वो आउटपुट लेयर पे आता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने देखा कि भाई मुझे ना 2 उसमें प्रिडिक्शन चाहिए थी, 0 या 1, तो मैंने आगे एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, स्टेप साइड एक्टिवेशन फंक्शन, स्टेप साइड या हेल्पी साइड कह रहे हैं, तो यस स्टेप यूनिट फंक्शन, तीनों ही नाम है उसके, वो लगा दिए। अब या तो वो 0 में प्रिडिक्शन देगा या 1 में प्रिडिक्शन देगा, ठीक है, या तो वो यहाँ पे 0 में दे रहा होगा या 1 में दे रहा होगा। अभी लेयर बनाते किस तरीके से हैं वो हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक इंट्यूशन दे रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क में होता क्या क्या। आज हम बहुत हेलो वर्ल्ड करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है 2 मिनट की, वो करेंगे। बाकी जो मेन चीज़ें होंगी, कुछ टफ चीज़ें होंगी मैथमेटिक्स के साथ, वो हम कल परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हमारे न्यूरल नेटवर्क्स वर्क कर रहे होते हैं। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? All right. Uh, who said? Okay, Ayan. Ayan said that chips in Neuralink company has not been experimented into humans. They have been experimented into pigs. I know that. उसकी रीजन ये है कि आप डायरेक्टली ह्यूमंस पे कोई भी कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, और आपको FAA भी इजाज़त नहीं देता, ठीक है ना। दिस इज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इजाज़त नहीं देगा आपको डायरेक्टली कोई मेडिसिन भी अगर आप बनाते हो, यू कैन नॉट अप्लाई दैट मेडिसिन डायरेक्टली टू ह्यूमंस। पहले उसके ट्रायल्स होते हैं। अब क्या कोविड-19 का सोल्यूशन डेवलप नहीं हो गया? हो गया। कितने सारे लोग कोविड-19 का सोल्यूशन डेवलप कर चुके हैं, बट आर दे कमर्शियल? नो, बट दे आर डूइंग, दे हैव परफॉर्म ट्रायल्स ऑन डिफरेंट monkeys, they have trials on bats as well, they have performed trial on different animals. Now UK has started trials on people who are willing to volunteer those, जो बिल्कुल मतलब होते हैं ना कोविड के अंदर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में कि उनका बचने का कोई चांस नहीं है, तो उनके ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो कमर्शियल हो गए। ओके, मोर क्वेश्चंस? कोई भी कोई क्वेश्चन है जिससे हम, अच्छा वेट क्या होता है? ओके लेट मी टेल यू। अभी आसान करने के लिए समझा रहा हूँ कि हाउ व्हाट यू कैन से टू द वेट, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लाइक न्यूरल नेटवर्क में वेट्स आर द कांस्टेंट बिटवीन द इनपुट लेयर एंड द हिडन लेयर्स, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड कैरी कर रहे होते हैं, या किस तरीके से समझाऊं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल आप एक न्यूरल नेट सपोज कर लें जिसमें हमारे पास 4 फीचर्स हैं, ठीक है, हाइट, कलर, वेट एंड लेंथ, इस तरह के हमारे 4 फीचर्स हैं। वो 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर 1 लेयर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा होगा ना, इट विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वेट। अभी लेवल टर्म में समझा रहा हूँ। टेक्निकल टर्म में जब हम कल ऑप्टिमाइजेशन समझेंगे ना, तब हम समझेंगे व्हाट इज वेट, व्हाट इज बायस। बायस तो आप लोगों को पता है बायस क्या होता है, लेकिन बायस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, तो तब मेरे ख्याल से आप लोगों के ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, बिकॉज वेट्स एंड द बायस आर पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। उसके बगैर तो आपको न्यूरल नेटवर्क समझ नहीं आएगा, आई नो दैट, लेकिन ये हम समझेंगे सबसे ज़्यादा कल कल हमारी, क्योंकि वर्कशॉप पूरी की पूरी इसी पे ही है, वेट, बायस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर अभी कुछ समझ में नहीं भी आ रहा, सो डोंट वरी। ऑलराइट, अच्छा हिडन लेयर के अंदर क्या होगा एग्जांपल के थ्रू समझा दें। ओके, लेट मी शो यू दिस थिंग कि हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग हिडन लेयर को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास x1 आया, यहाँ पे हमारे पास x2 आ गया। अब मैंने यहाँ पे xn लिख दिया कि दैट दे कैन बी मल्टीपल इनपुट्स, ठीक है। ऑन ईच x, जो पार्शियल x कैरीज देयर ओन वेटेज। भाई मैं यूं कह रहा हूँ, इसको इस तरह एग्जाम्पल में समझ लें कि मैंने मेरे पास एक फूड था, मैंने उसको मल्टीपल पार्टीशंस में काट के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। ईच हैज इट्स ओन क्वालिटी। अगर क्वालिटी सेम भी होगी तो ईच हैज इन ओन वेट, ठीक है ना। अगर हम वेट को वेट के टर्म्स में ले लें, सो एवरी पार्ट विल नॉट बी इन इक्वल वेटेज, और सब डिफरेंट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद इन द सेम एक्स। तो हमारे पास डिफरेंट एक्स आ रहे हैं और स्प्लिट होके वो डिफरेंट वेट कैरी कर रहे हैं। अभी जो गोल दायरा यहाँ पे बना हुआ है ना, बेसिकली दीज आर दी सेट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। इसमें हमारे पास हिडन लेयर्स भी होती हैं। हिडन लेयर्स इज द ओनली इन्वेंशन विच हैज ब्रॉट द हाई लेवल एक्यूरेसी बट रिक्वायर्स सो मच कंप्यूटेशन पावर। इवन तो हम देखेंगे
दैट देयर मे बी कुछ वर्कशॉप ऐसी होंगी डीप लर्निंग के अंदर जिसमें आपको रियल टाइम प्रोग्रामिंग नहीं करवाई जाएगी, कोड समझाया जाएगा, मॉडल ट्रेन हुआ होगा। मतलब जैसे अभी हमने पहले नहीं किया क्लस्टरिंग के अंदर, सारे मॉडल पहले से मैंने रन कर दिए और बताता गया देखो यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है। बिकॉज न्यूरल नेटवर्क्स माइट टेक मोर देन अ वीक, माइट टेक मोर देन अ मंथ इन ट्रेनिंग, डिपेंड करता है कि न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लेकिन पे एक्यूरेसी भी उस हिसाब से होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो हमारे पास अंडर फिटिंग की, ओवर फिटिंग की भी सिनेरियोज बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में आ जाते हैं, तो इन सबसे डील करना होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर न्यूरल नेटवर्क्स डज टेक टाइम, और कोलैब में आपको जीपीयू यूज़ करना पड़ेगा वाइल परफॉर्मिंग न्यूरल नेटवर्क, अदरवाइज कोलैब भी है वो बहुत टाइम लेगा। जीपीयूज के ऊपर, हालांकि वो टेस्ला जीपीयू है एनवीडिया का, एंड इट इज सो पावरफुल देन योर नॉर्मल 1080 Ti और 2080 Ti, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। तो अगर आप डीप लर्निंग इंजीनियर बनना सोच रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर सेव द मनी एंड मस्ट बाय RTX 3090 या 3080 Ti, जो आपका दिल करे। सेव द मनी एंड डू दैट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ AI इंजीनियर। उसके बगैर कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि कोलैब आपको इतनी देर के लिए नहीं देगा। जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तो आपको अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो दिस इज द समेशन पार्ट एंड दिस इज द एक्टिवेशन फंक्शन पार्ट। अब मैंने आपको कहा था ना कि हर इनपुट एक इंडिविजुअल वेट कैरी कर रहा होता है, तो वो उसका समेशन इस तरीके से होती है। आप देख रहे हो x1 वेट इंटू वेट 1 प्लस x2 इंटू वेट 2 प्लस और टिल अप टू x9 इंटू वेट 10। तो यहाँ पे हमारे पास सारी समीशंस हो रही हैं। पहले समीशंस के ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। अगर हम पीछे जाकर बात करें ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसा कोई न्यूरॉन हो जो सब किसी एक पार्ट के ऊपर सिग्नल दे रहा हो। ये एक न्यूरॉन सब पे सिग्नल देगा, एस पे भी देगा, एस पे भी देगा, एस पे भी देगा, एस पे भी देगा और उस पे भी देगा, फिर ये एस पे भी देगा, एस पे भी देगा, एस पे भी देगा, एस पे भी देगा। मतलब सबका साथ मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होता है। उससे ही अंदाजा होता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है। हो सकता है कि एक जगह पे आए, जब ट्रेनिंग होती है ना, आप मल्टीपल इपॉक्स डेवलप करते हो, मतलब मल्टीपल टाइम जो है ना आपका AI मॉडल डेवलप हो रहा होता है इस ऑन स्पेसिफाइड न्यूरल नेटवर्क्स। तो क्या पता वो ये लाइन जो हमारी जा रही हो, लाइक x2 से w2 पे आए, फिर b पे आए, फिर यहाँ पर आए, वो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी बिल्ड कर रहा हो, ये ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी बिल्ड कर रहा हो, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी बिल्ड कर रहा हो, तो हम वो इपॉक को यूज़ करते हुए देखते हैं कि हमारा लॉस कब क्या हो रहा है। डायरेक्ट बात है, आप डायरेक्ट न्यूरल नेटवर्क में ऐसा होता है, आप डायरेक्ट डेटा दिया आपने, उसने एक ही टाइम में पता लगा लिया व्हाट विल बी द दैट हाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आवर मॉडल, ठीक है ना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ डाटा, डायरेक्टली मालूम हो सकता है उसको। दैट इज व्हाई वी यूज मल्टीपल इनवर्स इक्वेशंस, जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं, एंड दे यूज मल्टीपल कॉम्बिनेशंस डिपेंडिंग ऑन वेट एंड बायस। उसके बाद वो जाके एक स्पेसिफाइड ना आउटपुट लेयर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज वी गोना डील विद, तभी टाइम लग रहा होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारे पास एक समेशन आ गया। अब वो समेशन फिर एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरती हुई जा रही है। वो एक्टिवेशन फंक्शन एक आउटपुट जनरेट कर रहा होता है, जिसका एक सैम्पलिंग इक्वेशन है, लाइक y इज इक्वल टू f फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है ना, x, यहाँ पे आप कोई भी इसका I इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द वेक्टर, इनपुट वेक्टर, और वेट ऑफ इनपुट वेक्टर जो भी हमारे पास है। तो बेसिकली y इट्स इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x into weight of a इनपुट वेक्टर। तो ये थोड़ा सा हो गया होगा हार्ड आप लोगों के लिए, तो लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। नाउ लेट मी सी इफ देयर इज एनी Q&A। राइट, ओके, इन इनिशियल वी गोना परफॉर्म टेंसर फ्लो, लेकिन एक वर्कशॉप हो सकता है कि हम न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे पूरा खुद। वो मैं देखूंगा आप लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर। अगर टेंसर फ्लो पे ही समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट उस पर नहीं लेके आऊँगा नमपाई पे, बिकॉज इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू बिल्ड मॉडल फ्रॉम एग्जैक्ट स्क्रैच। अदरवाइज वील कीप इट टू टेंसर फ्लो। अगर आ रहा होगा, सो देन वील गो टूवर्ड्स बेसिक स्क्रैच, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। अच्छा, ये न्यूरल नेटवर्क बनेगा कैसे? अरे सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, अभी हम सब करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो हीर आस्क्ड हाउ इट इज इफेक्टिव इफ इट टेक टाइम। इट टेक्स टाइम व्हाइल ट्रेनिंग।
वो समझ लो कि वो सीखने में टाइम लेता है, वो ट्रेनिंग में टाइम लेता है, वो परफॉर्मेंस में टाइम नहीं लेता। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो परफॉर्मेंस में भी टाइम लेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम आज हमारे पास 2000s में 2005 में इतने परफेक्ट बन चुके थे, लेकिन हमारे पास आप अगर फेसबुक की बात कर लें, हम जब से फेसबुक आया था तब से उसमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम था कि वो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कर रहा था या फेस ट्रैकिंग कर रहा था, आपको डायरेक्ट ऑटो टैगिंग सजेशन दे रहा था। लेकिन हमारे मोबाइल में एज अ सिक्योरिटी फीचर डायरेक्ट इतनी जल्दी क्यों नहीं आया? बिकॉज आवर मोबाइल वाज नॉट हाईली एबल टू कंप्यूट दोस थिंग्स इन सिंगल इंस्टेंस, ठीक है ना? तो हमारे पास कंप्यूटेशन पावर होनी चाहिए। कंप्यूटेशन पावर कम होगी तो इट विल ऑफ कोर्स टेक टाइम। अब न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी ही उसकी खूबसूरती है, ठीक है? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है कि वो ज़्यादा अच्छा सीखता है एज कम्पेयर टू अदर मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीन लर्निंग मॉडल cannot be generalized to the real world solutions for every kind of things. अब इमेजेस की बात कर लें, अब 5 6 7 8 इमेजेस चलो चला लेगा, 10 भी चला लेगा, थोड़ा सिस्टम स्लो कर देगा, चला लेगा। बट इफ यू आर हैविंग HD इमेजेस, हमारे पास 1080p क्वालिटी की इमेजेस आ रही हैं, अब उनसे डील करने के लिए आपके पास यू आर हैविंग थाउजेंड्स या मे बी मोर देन अ मिलियन मैट्रिक्स पर टाइम। तो आपके पास कंप्यूटेशन पावर अच्छी होगी, so it won't take time in recognizing. लेकिन while training it will absolutely take time because there are thousands of scenarios जिसमें से वो एक सिनेरियो बेस्ट जो होता है ना वो चुनता है, तो उसको थाउजेंड सिनेरियो पहले कंप्यूट करना पड़ता है, बट इट्स हाईली इफेक्टिव। व्हाट इज इपॉक्स, वी सी दैट लेटर। क्या समझा दूं वापस अयान? एक्टिवेशन फंक्शन का हमारा एक्टिवेशन फंक्शन शुरू हुआ। Activation function compresses the data mostly in 0 to 1 range depending upon activation function we use. Is this correct? Yeah, this is usually correct. Depends on the activation function. अभी हम आगे यही देख रहे हैं, आज हमारा activation function ही टॉपिक है बेसिकली इसके अंदर, क्योंकि activation function is the basic feed of neural networks. All right, getting tough. देखा मैंने कहा ना, अब ये इतना सा पॉइंट है ये जिसको हम हेलो वर्ल्ड बोलते हैं एआई का। हेलो वर्ल्ड भी पूरा नहीं है और यहाँ पे भी टफ हो गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल माइंड। मैथमेटिक्स इज वेरी एसेंशियल। इन्वेंशन करने जा रहे हो आप आगे जाके, सारी चीजें वेब या एंड्रॉइड तक लिमिटेड नहीं रहेंगी, हर चीज में एआई इन्वॉल्व होगी। दैट इज व्हाई यू हैव टू स्पेंड सम ब्रेन इन दिस। Okay, in hidden layers, is it perform linear or non-linear function? Alright, मुदस्सिर, it depends कि hidden layers में हम क्या perform करना चाहते हैं, but usually we perform non-linear computations, non-linear activation function, और usually अगर linear data हमारा है तो output के वक्त सब हम linear function apply कर देंगे। Okay, no more question now. Okay, are the values of weight and bias set at random or do we find them beforehand? नहीं, वेट और बेसिस बाय रैंडम सेट होती हैं, आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो हिडन लेयर्स आर ऑल अबाउट द यू कैन से आर ऑल अबाउट द एक्टिवेशन फंक्शंस, जो कि अभी हम देखेंगे। यस, वी गोना यूज क्लास एज वेल। ओके, अयान सेड दैट फेस रिकग्निशन सीवी ओपन सीवी की या CV2 की लाइब्रेरी से भी तो हो सकता है, तो ये सब की क्या जरूरत है? ऑलराइट, ओके ओके, इनफ क्वेश्चंस, ज्यादा है नहीं। What is x? X is the input guy, जो भी आप हो, x हमारे पास input है। जैसे मशीन लर्निंग में करते हैं ना, x और y होता था हमारे पास, y आउटपुट होता है, x हमारा इनपुट होता था, तो x is only the input। अच्छा भाई, ओपन सीवी से भी तो हो सकता है फेशियल रिकग्निशन, तो हम ये सब इतनी फाइल क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर विजन के अंदर? सर जी बिल्कुल हो सकता है, उसके पीछे क्या हुआ है? ठीक है, उसके पीछे क्या हुआ? क्या आपने सिर्फ कंप्यूटर विजन में रहना है? इवन थो यू जस्ट वांट टू बी इन द कंप्यूटर विजन, you cannot be identify your quality if you don't understand neural networks। अभी आपने ओपन सीवी की बेसिक लाइब्रेरी उठा के देख ली होंगी, लाइक हार कास्केड या दूसरी कुछ डिफरेंट लाइब्रेरीज होंगी, होती हैं, आपने वो यूज कर ली होंगी और आपने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम डेवलप कर लिया होगा। बट व्हाट इफ यू वांट टू बिल्ड अ सेल्फ ड्राइविंग कार? वहाँ पे तो इतने डजन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं कि आपके हाथ पैर फूल जाना है। To be very honest, but by the way, this was a good point. ये मेरे दिमाग में भी होता था यार, if we can in simpler manner, why we have to learn these things? But these are essential. That is why we have learned machine learning as well before starting deep learning. All right.
तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है इस बेसिक आर्किटेक्चर के अंदर कि ये इनपुट आया, रैंडमली वेट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना, हर उसमें वेट रैंडमली जनरेट हो रहे हैं, देन उनकी समेशन परफॉर्म हो रही है और वो समेशन डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन में जाती है और फिर वो एक आउटपुट जनरेट करता है। एक्टिवेशन फंक्शन का काम यही होता है कि उसके पास एक डेटा आता है और उसका अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली डेटा जनरेट करता है। अब उसके थ्रू हम किस तरह अपनी प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, विल सी दैट इन कमिंग स्लाइड्स। तो ये जो भाई ये थी थोड़ा बहुत रट्टा मारने वाली, रट्टा नहीं मारना, इसका थोड़ा समझ लो कि क्या है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड्स वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट बाय कैलकुलेटिंग with its sum and further writing bias with it. The purpose of the activation function is to introduce non-linearity into the output of the neuron. अब थोड़ा वेट और बायस को थोड़ा गौर से समझिएगा। मशीन लर्निंग के अंदर अगर हम बात करें लीनियर रिग्रेशन की, तो उसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। याद है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो समझ लें वो एक वेट है। हम वहाँ पे एक स्लोप रिप्रेजेंट कर रहे थे बिकॉज दैट वाज ओनली स्पेसिफिक फॉर लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, वी आर सेइंग द कोफिशिएंट ऑफ इनपुट लाइक वेट। वो जो W हम यहाँ पे देख रहे थे ना, वो यहाँ पे A है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मेरे से गलती हो गई। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हमारे पास वेट है, प्लस b इज द बायस। ठीक है, b क्या है, जो कांस्टेंट है हमारी x की वैल्यू कुछ भी हो वही हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। वेट कैन बी डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट x। अब क्या इससे मालूम हो रहा है, फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास एक डाटा जनरेटेड है जिसकी हमें इक्वेशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड पता है। फॉर एग्जांपल उसकी इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। मशीन लर्निंग को नहीं पता, हमने ट्रेन किया, उसको डायरेक्टली थोड़ी पता चल जाएगा कि भाई 2x प्लस 1 ही होगी। पहले वो चाहेगा कि 1x प्लस 1 करूंगा, डाटा एक्यूरेसी नहीं मिल रही, फिर 2x प्लस 1 कर देगा, मिल जाएगी, फिर 2x प्लस 2 कर देगा और आउट हो गई, तो क्या करें 2x प्लस 1 ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। तो ये चीज को हम आगे जाके हम देखेंगे। देयर आर सम अदर कंसेप्ट एज वेल लाइक, अब इस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर अगर वेट बायस के अलावा भी कुछ चीजें हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि बैक प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हैं, जो कि एक पूरे पूरे डे के वर्कशॉप्स हैं जो आगे अपकमिंग में हम कवर करेंगे। पूरे पूरे डे के वर्कशॉप्स हैं वो, एक एक टॉपिक। So we gonna understand some basic activation function जो majorly use होते हैं। सबसे ज़्यादा हम जब एंट्री लेवल की बात करते हैं ना, तो majorly सबसे ज़्यादा यही यूज हो रहे होते हैं। All right. Can we predict result of any sport match by using neural network? Of course we can. Different neural network architecture होते हैं जो कि हम अभी देखेंगे। ऑल राइट, तो अभी भी आपको W और B में ना कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक नोटपैड खोलता हूँ और उस पर समझा देता हूँ कि भाई WB बेसिकली है क्या। बल्कि नहीं, मैं अब जाता हूँ अपने गिटअप पे और आपको लीनियर रिग्रेशन की जो फाइल थी ना वो खोलता हूँ। आप भी चाहें तो मेरी गिटअप पे जाएं और तीसरी वर्कशॉप जो होगी हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन फटाफट फार्म हो जाए, मैं भी आता हूँ वहाँ पे। ऑल राइट, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। ओके, share what I have to include now. All right. ओके, हमारे ये हम आज परफॉर्म करेंगे, अभी इसको नहीं देखें, अभी सिंपली आए यहाँ पर आए और ML02 हीरो पे, यहाँ पे हमारे पास सिंपल इन रिग्रेशन की वर्कशॉप थी। अब इसकी इक्वेशन से मैं आपको वेट और ब्रेन समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एक्टिवेशन इक्वेशन की डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, लेकिन उससे पहले आप सिंपल वाली समझ लें कि वेट और बायस बेसिकली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यार अब इतने मुश्किल वक्त में अब देखो ये बोल रहा है कि रिलोड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे खुद ही टाइप करके बता दूंगा। यहाँ हुआ हुआ टाइप सारा और अभी बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। सो व्हाट वी गोना डू, वी गोना ओपन कोलैब एंड आई विल नेविगेट टू माय ओल्ड। ये खुल के भी नहीं खुला। इट्स सेइंग मी कि ये व्हाट इज हैपनिंग हियर मैन, GitHub is getting bugged nowadays. What? Please no.
ऑलराइट, सो इट्स हैपन कि भाई हो गया ओपन। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ना गौर से समझिएगा, इसको भी इतना रह रहते हैं, ये एक स्पेसिफिकली लीनियर की इक्वेशन थी। यहाँ पे आप आ जाए इक्वेशन ऑफ स्लोप के ऊपर। अब जब यहाँ पे हम मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म, यहाँ पे हम सिंपल इक्वेशन में बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे हम मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म कर रहे थे ना, तो यहाँ पे जो वाई इंटरसेप्ट जो हमारे पास था ना, वो सिर्फ ये एक ही चीज़ थी जो कि था हमारे पास सी कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बायस। यहाँ पे वो डिफरेंट बायस लगा लगा कर देखेगा टू फिट आवर मॉडल, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो हम लीनियर रिग्रेशन के स्पेसिफाइड मॉडल से काम कर रहे हैं, बट हेयर वी आर हैविंग डिफरेंट थिंग्स इन न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे वही वो डिफरेंट बायस खुद से लगा लगा कर देखेगा कौन सा सेट बेटर है। इसी तरीके से डाटा हमारे पास आ रहा होगा, ये जो एक्स हमारे पास आ रहा होगा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने स्लोप से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब यहाँ पे वो डिफरेंट यू कैन से वेट से मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि डाटा हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्मेट में हो, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉर्मेट कभी भी मशीन लर्निंग में ट्रेन नहीं होता। जब आपको पता ही यही है कि भाई परपेंडिकुलर ही आपका पूरा डाटा है, कि मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू दे दो, एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं रहती। परपेंडिकुलर की नेचर यही होती है। फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट बना हुआ हो ना, तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाई की वैल्यू क्या आ जाए। सो इट्स लाइक इट्स नेवर डिफाइंड परफेक्ट कोरिलेशन। या फिर आपका पूरा परपेंडिकुलर यहाँ पे बना हुआ हो या हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर बना हुआ हो, कभी नहीं होता। हमेशा थोड़ा बहुत स्लोप होना चाहिए विच कैरीज अ वेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो m है ना, इट्स लाइक अ वेट हेयर एंड c इज लाइक अ बायस हेयर। सेम न्यूरल नेटवर्क के अंदर यही होता है। ये सिंपल इक्वेशन थी, वी विल सी सम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एज वेल। हमारे पास एक वेट होगा और एक हमारे पास बायस होगा। अब आ गई समझ में? आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, 8:43 पे अयान आपका मैसेज आता है एक्टिवेशन फंक्शन समझ नहीं आया, अगेन प्लीज। मैं दोबारा समझा दिया, सो लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन और नॉट। आई होप देयर आर सम स्टूडेंट्स सेइंग ऑलरेडी क्लियर्ड, ठीक है ना। सो b is a bias like a constant and w is a weight as a slope here we were seeing. So now we'll switch back to our slides which were important, of course. Let me present those. Let me see man, present हुई है नहीं हुई? Okay, हो गई है present. So now we'll see regarding some activation functions again. अब एक्टिवेशन फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया दैट दीज फंक्शंस और डिफरेंट नोड्स डिफाइंस द आउटपुट ऑफ दैट नोड गिवन एन इनपुट और सेट ऑफ इनपुट्स। ये मैंने अपनी डेफिनेशन झाड़ दी यहाँ पे। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन जो थी ना हमारे पास, वो कुछ शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा है। क्या बोल रहा है? हमारे पास एक इनपुट वेक्टर आया, हमारे पास इस इनपुट वेक्टर पे आने के बाद हमने उससे अपना फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमने उसका एक आउटपुट वेक्टर जनरेट कर दिया। कुछ भी नहीं हो रहा, एक्स आ रहा है और हम वाई बता रहे हैं। हमें बोल रहे हैं भाई ये कौन सा बंदा, हम बोल रहे हैं भाई ये फलाना बंदा है। एक्टिवेशन फंक्शन का काम सिर्फ यही है। नाउ देयर आर सम मेजर एक्टिवेशन फंक्शन जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं और बेसिक लेवल पे यही पढ़ाए जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ाए जाते। तो ये भी आप लोगों के लिए आज इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ना कि आपको आज रात को नींद नहीं आएगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, हालांकि आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स लीनियर फंक्शन। के लीनियर फंक्शन क्या करता है? लीनियर फंक्शन कुछ नहीं करता, जो अभी हम पढ़कर आते हैं ना बस वही करता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ए हमारे पास बायस है और एक्स के साथ एक पर्टिकुलर वेट है। लोग कुछ इस तरीके से भी दिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा जो एक्चुअल इक्वेशन है, आप नेट पे देख लीजिएगा। समेशन ऑफ एक्स इनटू वेट ऑफ व्हाट? इनपुट वेक्टर्स। एक्स हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है ऑफ इनपुट वेक्टर्स। वेट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? कोफिशिएंट ऑफ दैट यू कैन से इनपुट जो होगा वो रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ईच एक्स इज कैरी इट्स ओन वेट। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर हम गौर से देखें ना, तो अभी समीशन को छोड़ दें, एज्यूम कि हमारे पास सिर्फ एक ही जो है ना वो वैल्यूज हैं एक्स की, एक ही हमारे पास फीचर है एक्स, मल्टीपल फीचर्स नहीं है हमारे पास। तो अब क्या होगा? लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन क्या कर रहा होगा? इफ यू आर हैविंग लाइक एक्स और यहाँ पे हमारे पास 5, हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 4।
तो आफ्टर मैक्सिमम ट्रेनिंग इट्स पॉसिबल कि हमारा 5 की वैल्यू ए हो, कि हमारा बायस 4 की वैल्यू ए हो, कि हमारा बायस 4 था, 5x+4 एक्स के हमारे पास वैल्यू वही होगी जो हमारे पास इनपुट आ रहा होगा, और वेट की वैल्यू जब सबसे बेस्ट उसको मिलेगी वो अराउंड 5 ही मिलेगी। थोड़ा बहुत फर्क होता है वैल्यूज के अंदर, प्रिडिक्शन में भी आएगा, 100% प्रिडिक्शन जल्दी से नहीं आती, बट यू विल सी दिस हाउ इट गोइंग टू परफॉर्म। ये कब यूज होता है? ये यूजुअली सबसे लास्ट लेयर में यूज हो रहा होता है, या जब हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम हो। अब अब एक क्वेश्चन होता है कि भाई रिग्रेशन प्रॉब्लम हम न्यूरल नेटवर्क से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मशीन लर्निंग से सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? या सम टाइम्स होता है कि डाटा बहुत सारा होता है, बहुत तवील लंबा डाटा होता है, और फिर आपकी मर्जी होती है आप कुछ भी यूज़ कर लें। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर लूंगा, बिकॉज न्यूरल अगर आप एक दो लेयर यूज़ करो ना लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन की, तो आप ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम लेगा नहीं वो, लेकिन वो शायद मशीन लर्निंग मॉडल से ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी जनरेट कर रहा होगा इफ आई एम हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इफ ऑल लेयर्स आर लीनियर इन नेचर द फाइनल एब्सोल्युटली विल बी नियर वन। अगर हमारे पास डाटा खुद एक लीनियर फॉर्मेट के अंदर है ना, तो हमारे पास जो एंडिंग लेयर होगी ना जिससे हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, दैट विल बी एब्सोल्युटली इन अ लीनियर फंक्शन। इसकी रेंज कोई भी हो सकती है, इसका आउटपुट रिटर्निंग वैल्यू 0 1 2 3 नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू हमारे पास इसमें हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, अब वेट कैसे मालूम हुआ? वेट हमें मालूम नहीं हो रहा, वेट सब डीप लर्निंग को मालूम हो रहा है। जिस तरीके से मशीन लर्निंग में हमें पता नहीं चलता था ना मशीन लर्निंग क्या सोच रहा है, तो वहां पे ओके ओके ओके, तो हाँ, तो वहाँ पे हमारे पास बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हो रही जिस तरह वहाँ हो रही थी, कि यू कैन से कि किस तरह इजी करके समझाऊँ, मेरे लिए भी मुश्किल हो रही है कि हमारे पास डाटा आया, अब वो प्रिडिक्ट कर रहा है यार इसके साथ 2 अगर वेट लगाऊं तो क्या मैं एक डाटा प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ उसका एस्टिमेटेड उसकी एक्चुअल डाटा के साथ, क्या अगर नहीं कर पा रहे, तो वो इस तरीके से हमारे पास वो क्रॉस अपने अंदर ही क्रॉस वैलिडेशन कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें अपने पास ही इवेल्युएट कर रहा होता है, हमें खुद से नहीं करनी पड़ती। लेकिन फॉर यस ओवर वेटिंग हम यहाँ पे भी एक जगह पे आके डाटा को स्प्लिट इंटरस्प्लिट करेंगे कुछ जगहों पे, बट दैट्स अ वेरी नेक्स्ट स्टेप, अभी ज़रूरत नहीं है। पहले 2 लगाएगा वो, फिर वो 5 लगाएगा, वो इस तरीके से खुद ही सपोजिशन करता है, रैंडमली सपोजिशंस होती हैं। हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे एक प्री डिफाइंड हमारे पास इक्वेशन मौजूद थी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ W। यहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइंड इक्वेशन मौजूद नहीं है न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शन की इक्वेशन मौजूद है, जिससे वो डाटा हमारे पास जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन होती है ना, वो नॉन लीनियर डाटा को नॉन लीनियरिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, और उसके बाद हम उसको लीनियरिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास मैक्सिमम फीचर्स भी जनरेटेबल पॉसिबल हो सकते हैं, कि इसके जो हिडन लेयर का मकसद ही यही है कि जो डाटा के अंदर हिडन फीचर्स हैं वो भी मालूम हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आई एम मी एंड देयर इज वन मोर पर्सन हैविंग अ सेम फेस। अब एआई बता सकता है एट सम पॉइंट, अगर आपकी बहुत अच्छा मॉडल टेस्ट डेवलप हुआ है, कि उसमें से हुजैफा कौन है, हु एम आई, वो हर हिडन फीचर्स पे पहुंचने की कोशिश करेगा जो ह्यूमन आई से विजिबल नहीं है, जो आपकी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं है। दैट इज बट हिडन लेयर इज एक्चुअली परफॉर्मिंग विद डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन। लीनियर फंक्शन यूजुअली हम आउटपुट लेयर पे लगाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे एक कमेंट बहुत अच्छा है, साबित हुआ है। राइट, ओके, आई डोंट नो, लेट मी प्लीज टेल योर नेम, ताकि मैं सबको आपका एक कमेंट जरूर अनाउंस करूं। ऑल राइट, सो विल सी दैट लेटर। अब हमारे पास ये लीनियर फंक्शन है, एंड देन वी गोना स्टेप टुवर्ड्स हैवी साइड स्टेप फंक्शन। ये बहुत सिंपल है यार, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ये लीनियर रिग्रेशन में भी ये यूज़ हो रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि आज हम टाइम पे ख़त्म कर पाएंगे, आई विल टेक योर 20 मिनट्स मोर, और उसमें जितना होगा फिर उतनी करेंगे हम। ऑलराइट, तो भाई अब हम आ जाते हैं हैवी साइड स्टेप फंक्शन। ये तो बच्चों वाला, ये आपके फौरन समझ में आ जाएगा। इसके अंदर ना ये भी ज़्यादातर ना मजे की बात ये है कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन ये भी ज़्यादातर ना आउटपुट लेयर पे यूज़ होता है। डाटा आ रहा होता है उसके बाद डिफरेंट वेट से, एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से। इसकी ना इफ और एल्स वाली कहानी होती है। इफ और एल्स वाली कहानी किस तरीके से होती है कि अगर एक्स की वैल्यू
एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो ये इसको 1 कर देगा, अदरवाइज 0। ठीक है, एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है, या तो 1 या 0। ये जब आउटपुट जनरेट करेगा ना, या तो वो 0 देगा या 1 देगा, उसके दरमियान की कोई वैल्यू नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे देखो, ओ सॉरी, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वैल्यू चाहे नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेट हुआ है। ये थ्रेशोल्ड हमारे पास 0 था या 0.1 था, जो भी कह रहे हैं, 0 पे कह लें। तो यहाँ तक वो आया, जैसे ही वो उस थ्रेशोल्ड के बराबर हुआ या उससे ऊपर निकल गया, इट जम्प्स टुवर्ड 1। ठीक है, एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस तरह निकलती है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकलती। ये प्रोबेबिलिटी इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जवाब प्रोबेबिलिटी भी नहीं देता। इसका जवाब देना ट्रू और फॉल्स के करीब है और कुछ नहीं है। तो ये था सबसे हमारा इजी फंक्शन। ये बिल्कुल इसी की तरह एक तरह का परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम सिंपल था ये भी, बस ये रिग्रेशन फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है। ये कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, मैंने बोला कि मेरा अगर वेट ये है और अगर मेरा हाइट ये है, तो क्या मुझे डिजीज कम होंगे ज़्यादा होंगे। सो इट विल बी गिविंग मी सर्टेन वैल्यू विच इज ए रिग्रेशन एनालिसिस। बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हेविसाइड स्टेप फंक्शन, कि जब हमारी प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन बेस्ड है, जब हमारी प्रिडिक्शन बाइनरी क्लासिफिकेशन है, जब हमारे पास 2 क्लासेस हैं, हमारे पास इसमें 2 क्लासेस होना लाजमी है। सो इट मीन्स वी कैन यूज दिस फंक्शन एज वेल। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड पे 0 और 1 यूज कर सकता है। ऑलराइट, सो आई होप यू आल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये प्रेडिक्शन स्टार्ट से ओके। ओके, मैं आपका जवाब से दे चुका हूँ। आई डोंट नो हु द एनोनिमस यू आर। अब एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था, आई नो that the purpose of the activation function is to introduce non-linearity into the output of a neuron. Alright, मैंने अभी क्या कहा कि ये जो लीनियर फंक्शन है और ये हेविसाइड फंक्शन है, ये हमारी आउटपुट लेयर पे लगता है। ठीक है, यूजुअली बहुत देर होता है कि आप इसको हिडन लेयर में यूज करो, लेकिन आप हिडन लेयर में यूज नहीं करते। हिडन लेयर में जब यूज होती है, अब हम उसकी तरफ आएंगे। हिडन लेयर के अंदर जो लेयर्स होती है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात कही थी कि जब डाटा हमारे पास आ रहा होता है, हम उसको नॉन लिनियरिटी में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। हम उसकी शक्ल को बिगाड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर है ना डाटा हमारे पास। अब जब उसको थोड़ा सा तिरछा विरछा कर रहे हैं, खींच ताच के अच्छी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेच आउट करके हम देखें दैट कि उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या हिडन फीचर्स पॉसिबल है, कि एक पॉइंट वैल्यू के चेंज होने से सब ग्राफ स्ट्रेट ना हो रहा हो, कि वहाँ पे हिडन लेयर के अंदर वो ग्राफ पॉलिनोमियल बन जाता हो। तो ये हमारे पास वो हिडन फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम वेट और बायस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, हम नहीं कर रहे होते, बेसिकली डीप लर्निंग कर रहा होता है या न्यूरल नेटवर्क्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो these activation functions are obvious the cause to generate the data or transform our linear data also into non-linear one. जरूरी नहीं है कि हमारे पास डाटा लीनियर में ही हो, हमारे पास डाटा नॉन लीनियर भी हो सकता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उसकी भी और शक्ल बिगाड़ देगा, ऐसी बात नहीं है। तो उसके थ्रू हमें वेट और बायस की एनालिसिस मिलती है। ये जो हैवी साइड और लीनियर फंक्शन है, दीज यूजुअली यूज्ड इन आउटपुट लेयर्स, जहाँ से हम प्रिडिक्शन जनरेट कर रहे होते हैं 0 और 1 की। अभी हम ये नहीं कहें कि भाई हिडन लेयर में क्या हो रहा है, अभी हम वो बात कर रहे हैं कि हमें मिलता क्या है और ये कहाँ यूज होती हैं। सब आपको अभी ये समझ में आनी चाहिए कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यूरल आर्किटेक्चर कैसे बनता है। यहाँ पे हमने लीनियर फंक्शन बना दिए, यहाँ पे हमने हैवी साइड स्टेप फंक्शन बना दिए। ठीक है ना, अब हैवी साइड स्टेप फंक्शन 0 1 प्रिडिक्ट कर रहा है, लीनियर फंक्शन एक रिग्रेशन वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है। Now this is sigmoid function also known as logistic function. अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मशीन लर्निंग में परफॉर्म किया हो तो ये उससे बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपको याद हो, यू कैन से हमने लीनियर रिग्रेशन के जिससे हमने परफॉर्म किया और अभी यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन देखा, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जब हमने परफॉर्म किया जो कि रिग्रेशन नाम से था, लेकिन थी वो क्लासिफिकेशन, जिसका सेम ग्राफ में बिल्कुल ऐसे ही था। ऑलराइट, ये भी क्या कर रहा होता है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा होता है, बट इसमें डाटा हमारे पास कंप्लीटली लीनियर नहीं रहता। These sigmoid functions are majorly used in, you can say, hidden layers as well.
ये आउटपुट भी लोग यूज कर लेते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपकी एक्यूरेसी किस में ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन दीज सिग्मॉइड फंक्शंस आर यूजुअली यूज्ड इन, यू कैन से, इन हिडन लेयर। मैं बोलते बोलते भूल जाता हूँ मैं बोल क्या रहा था। अब इसका हम ग्राफ देखें तो यह हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या था कि यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास जीरो वैल्यू थी, फिर एकदम 1 हो गई। यहाँ पे हमारे पास ये सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन से बिल्कुल 100% सेम है, 99% कह लें। ये वैल्यूज निकालता है किस तरीके से, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्स। हमारे पास जो हम एक्स को इनपुट दे रहे होंगे ना, वो इसमें जाएगा और 1/e करके उसको प्रिडिक्ट कर रहा होगा। इसका आंसर 0 है या 1 है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ई क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल कह लें या एरर कांस्टेंट कह लें, एक्सपोनेंट है हमारे पास। इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि डेटा इज नॉट जीरो सेंटर्ड। अब ये तो हम यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे हमारे पास डेटा फॉर एग्जांपल जीरो सेंटर्ड था, लेकिन ये हर दफा की कहानी नहीं है। ये तो थ्रेशोल्ड के ऊपर बात हो रही है कि अगर इस थ्रेशोल्ड पर डाटा हो, अब थ्रेशोल्ड आपका 1 पे या 2 पे भी सेट हो सकता है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या कहानी थी सो एक्सक्यूज मी, इसमें हमारे पास क्या कहानी है कि थ्रेशोल्ड जीरो सेंटर्ड नहीं है। जीरो हमारे पास यहाँ आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये अगर मेरा कर्सर आपको यहाँ पे घूमता हुआ नजर आ रहा हो, तो दिस इज और ओरिजिन पॉइंट, और डाटा यहाँ पे सेंटर नहीं है। सेंटर हमारा कहाँ हो रहा है, 0.5 पे हो रहा है। तो मतलब फॉर दिस इज बेसिकली सेंट्रलाइज टू 0.5 वैल्यूज। अब अगर ये 0.5 के ऊपर सेंट्रलाइज्ड है, तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे पास कि अब अगर हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव जाती जा रही है ना, तो हमारे पास वैल्यूज 0 से नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन ही परफॉर्म कर रहा है। ये हमारे पास एक बहुत मेजर लॉस होता है जो कि हमारे पास पॉसिबल हो सकता है while performing you can say sigmoid function in hidden layer। लेकिन फॉर यूजुअली इसको हम उसमें परफॉर्म नहीं करते, आउटपुट लेयर में उसको यूजुअली परफॉर्म नहीं कर रहे होते। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन और होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन बिल्कुल ही बेकार हो गया। आई एम टेलिंग यू अबाउट द ड्रॉबैक क्या हमारे पास, और उसकी रिटर्न में हमारे पास एक और जो है ना फंक्शन हमारे पास आया, और वो था हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। 10h का मतलब होता है हाइपरबोलिक, अगर आपने इंटर ओ लेवल में इसको पढ़ा हो। नाउ व्हाट इज दिस, हमारे पास 10 हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, हाइपरबोलिक साइन के और ओवर हाइपरबोलिक कोसाइन के। ये हमारे पास अगर आपने बचपन में पढ़ा हो तो टेंजेंट इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, ठीक है ना, ये एक सुना होगा। अगर आपने ये नहीं भी देखा था ना, तो ये भी ऐसा ही है, दैट हाइपरबोलिक टेंजेंट इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एंड ओवर हाइपरबोलिक कॉस। फंक्शन यहाँ पे x आ रहा है, लेकिन इस साइन हाइपरबोलिक साइन h के अंदर या हाइपरबोलिक कोसाइन के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअल इक्वेशन क्या है। यहाँ छोटी सी लिखी हुई थी तो मैंने थोड़ी बड़ी करके लिख दी है। यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये इक्वेशंस परफॉर्म हो रही है। एक्सपोनेंशियल x के अंदर से हमने माइनस कर दिया नेगेटिव एक्सपोनेंशियल x और उसको डिवाइड कर दिया, सब वही चीज़ है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक हमारे पास एक प्लस हो गया, इसको हम ये एक साइन था और हमारे पास ये कोसाइन, जिस तरह के हम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। अब इसका क्या फायदा था जो इससे बेटर था, वाइल यूजिंग इन हिडन लेयर्स। ये भी हिडन लेयर में 99% यूज होती है, और ये 100% मैंने देखा है इसको हिडन लेयर में यूज किया जाता है, उसके अलावा कहीं और यूज नहीं किया जाता। हमारे पास डाटा लीनियर लेटेंसी में आ रहा हो, नॉन लीनियर लेटेंसी में आ रहा हो, उसने तो उसकी एक शक्ल बिगाड़ के रख देनी है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनना है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लॉटिंग होनी है। और अब क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है, यूजुअली यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशंस, हमारे पास जब 1 और 0 हो, आउटपुट लेयर पे हम कुछ और लगा दें, चाहे हैवी साइड हम लगा दें आउटपुट लेयर पे, लेकिन हिडन लेयर में हमारे पास फॉर एग्जांपल चल रहा है बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसमें हमारा फायदा क्या होता है कि हमारे पास डाटा जो इस पर जनरेट हो रहा होता है, इस पर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, वो जीरो सेंटर्ड होता है। इसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन में होता है, वहाँ पे हमारे पास डाटा सेंटर में ओरिजिन नहीं होता। मतलब अगर हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हैं, तो हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम टू -1 भी जा सकती हैं। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, इसको हम रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन के वक्त देखेंगे, that what makes the sigma makes the difference between sigmoid and hyperbolic tangent, जो अभी तक हमने नहीं देखा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ और भी थी जो एक लेट मी टेल यू,
मैंने शायद अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। यस, वन मोर थिंग, सॉरी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिग्मॉइड के अंदर हमारे पास 0 और 1 ही आ रहा है, एक तरीके का ना, 0 वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है। यहाँ पे हमारे पास -1 भी आ रही है, 0 भी आ रही है, 1 भी आ रही है। इससे हमको फायदा क्या हो रहा है? अगर लेमन टर्म में बात की जाए ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल भाई ये इतने परसेंट जो है ना मुझे हुज़ैफा की शक्ल लग रही है। एक होती है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, जो आगे जाके मैं आपको बहुत आगे जाके बढ़ाऊंगा। तो उन सिनेरियोज के अंदर ना हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन बहुत काम आता है। जब हम नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की बात करें, जब जीरो से वैल्यूज हमारी जो प्रिडिक्शन रेंज है -1 तक भी जा रही हो। अब इसका एक्चुअल मकसद क्या होता है? हमने फीचर स्केलिंग परफॉर्म की थी, स्टैंडर्ड स्केलिंग परफॉर्म करते थे कि भाई के स्टैंडर्ड स्केलिंग स्पेसिफिकली ये तमाम डेटा का जो समेशन हो हमारे पास मीन जो समेशन के बाद उसका मीन निकलेगा वो 0 के बराबर हो या 0 हो जाए। यहाँ पे भी यही हो रहा होता है, जब आप उसको परफॉर्म करते हो ना तो आपको जो मीन होता है ना वो 0 निकलता है। क्यों निकलता है? तमाम डेटा आपके पास जैसे मर्जी नेचर में आया हो, चाहे आपके पास वो लीनियर में हो, नॉन लीनियर में हो, आपके पास वो किस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो इस फॉर्मेट में, जो एस टाइप फॉर्मेट है जो कि जीरो सेंटर्ड है, इस पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब जीरो सेंटर्ड भी है, इसका फॉर्चुनेटली मीन ऑलमोस्ट जीरो ही डेवलप हो रहा होता है। यहाँ पे हम डेटा को यहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे और इससे हमें क्या फायदा होता है वो हम जरूर बहुत जल्द देखेंगे इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। All right, so let's moving toward maybe the last or second last activation functions पर हमारी workshop 90% हो चुकी होगी, which is ReLU function, which is you can say rectified linear unit function। ये linear function से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन linear function में हमारे पास एक changing थी। Let me share it again। इसकी कोई स्पेसिफाइड रेंज नहीं थी, ये बिल्कुल नेगेटिव भी जा सकता है, ये बिल्कुल ज़्यादा आगे भी जा सकता है। इसमें हमारे पास कोई ये नहीं है कि 0 से नीचे वैल्यू जा रही हो, मतलब अगर 0 से नीचे जा रही हो तो चला जाएगा आराम से। इसमें कोई हमारे पास ऐसा सिनेरियो नहीं था। अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज बिलो 0, ठीक है ना, यहाँ पे मुस्तकिल जा रहा है, चाहे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव भी हो जाएंगे तो ये रुकेगा नहीं कभी। लेकिन वैल्यू के अंदर जिसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर x 0 से कम है तो वैल्यूज विल ऑलवेज बी 0 फॉर दैट फंक्शन। लेकिन अगर x 0 से बड़ा है तो अकॉर्डिंग टू व्हाट बायस एंड वेट इट्स हैविंग, उसके हिसाब से इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। यूजुअली रेलू बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है इन तमाम एक्टिवेशन फंक्शन के, एंड इट्स लेस कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव देन हाइपरबोलिक टेंजेंट भी और सिग्मॉइड, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सिंपलर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आप इसलिए ऐड कर दिया कि ये सिंपल इसके कैलकुलेशंस हैं। और जब कॉस्ट की बात करते हैं ना तो ये कॉस्ट के अंदर आपको बहुत कम पड़ता है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि कॉस्ट किसकी होती है? हमारे पास कंप्यूटेशन की होती है। बट वी कैन नॉट सेक्रीफाइस आवर एक्यूरेसी फॉर दिस कॉस्ट एज वेल। अब एक चीज़ और भी है जिसको समझ में ना आ रहा होता है ना, कि ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिसको समझ नहीं आ रहा ना कौन सा फंक्शन अप्लाई करूँ, तो वो स्टार्ट रेलू से ही करता है। आप देखोगे बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे स्टार्ट बिल्कुल ना रेलू से हो रहे हैं, और ये हिडन लेयर में ही यूज़ होता है, ये कभी आउटपुट लेयर में यूज नहीं होता, बिकॉज दिस इज एक्चुअली बैक प्रोपोगेटिंग द एरर्स एंड हैविंग मल्टीपल लेयर ऑफ न्यूरॉन। ये बहुत सारी चीज़ें अभी आप उसमें देखोगे, जब बैक प्रोपोगेशन की स्पेसिफिक क्लास होगी तो ये बेसिकली वो परफॉर्म कर रहा है। ये सिर्फ एक सिंपल इंट्रो दे रहा हूँ, इसको भी हम एक्शन में नहीं ले रहे हैं, हम एक्शन में आगे जाके लेंगे ये क्या हमारे पास इसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है। बस इसको याद रखना है, ये भी इफ एल्स टाइप है कि अगर 0 से पहले है, सॉरी, अगर 0 से पहले है तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही वैल्यू है। अगर x से ऊपर है तो हमारे पास जो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन था ना, जो y इज इक्वल टू ए एक्स बी कहलाए या डब्ल्यू एक्स बी कहलाए, तो हमारे पास वही फॉर्मूला रख जाता है, फिर ऊपर तक जा रहा होता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है हमारे पास यूज हो जाता है। इसकी रेंज पॉजिटिव में कोई रेंज नहीं है, इन्फिनिटी है, लेकिन नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 पा के रुक जाता है। ऑल राइट, और लास्ट फंक्शन है सॉफ्टमैक फंक्शन, जो कि बहुत बेहतरीन किस्म का फंक्शन है, जो कि देखते हैं हम कब यूज़ करें। इसका ग्राफ में बिल्कुल भी मत जाएं, इसको आपको ग्राफ से मैं नहीं समझा सकता, बिकॉज इसको ग्राफ से समझा नहीं जा सकता। दिस रिप्रेजेंट्स द मल्टीपल क्लास, द यू कैन से दिस इज यूजुअली यूज्ड इन हिडन लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये क्या कर रहा होता है हमारे पास
कि इसके अंदर एट द सेम टाइम इक्वेशन के अंदर आउटपुट वेक्टर भी इस्तेमाल हो रहा है, इसकी इक्वेशन के अंदर इनपुट वेक्टर भी इस्तेमाल हो रहा है. सॉफ्टवेयर फंक्शन इज स्पेसिफिकली यूज इन ओपन सीवी एज वेल अयान. तो सॉफ्टवेयर फंक्शन क्या है बेसिकली, जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती है ना, देन इट्स important or maybe essential for us as well to use softmax function. अब मैंने बोला कि भाई क्लासिफायर बनाओ to identify dogs and cats. But what if I'm having multiple classes? लेकिन अगर dogs भी हैं, cats भी हैं और mice, हमारे पास 3 चीजें हो गई, चूहा, बिल्ला एंड कुत्ता. तीनों को अगर हमें क्लासिफाई करना है, वी हैव टू क्लासिफाई ऑल दीज 3 थिंग्स. हम क्या यूज कर रहे होंगे? सॉफ्टमैक्स फंक्शन. यहाँ पे हम उसको क्लासिफिकेशन के सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं. इसकी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है. ग्राफ कैन नेवर बी द सेम. यूजुअली वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ, लेकिन ऐसा ग्राफ कैन नेवर बी द सेम. इसके ये क्वेश्चन है, इसकी जो भी वैल्यू जनरेट हो रही होती है उसके हिसाब से आप ग्राफ जनरेट कर सकते हो, बट इट कैन नेवर से. अभी क्या कर रहा होता है कि ईच क्लास के दरम्यान 0 और 1 की वैल्यू जनरेट कर रहा होता है टप्पल फॉर्मेट के अंदर, कि भाई हाँ इसने बोला कि ये क्लास है और ये क्लास है, फिर ये क्लास है, वाइल ट्रेनिंग द डाटा. इस सिनेरियो को देखते हुए कितनों को 1 का है, कितनों को 0 का है, उसकी प्रोबेबिलिटी जनरेट कर रहे होते हैं हम बाय आवरसेल्फ, जिसको हम इवेल्युएट करते हैं जाके आगे जाके हम देखेंगे. बट इट्स गिविंग ट्रू कि हाँ भाई ये डॉग है, इट्स गिविंग 0 भाई ये डॉग नहीं है. ये इस तरह से काम करता है बट फॉर मल्टीपल क्लासेस. ये फंक्शन समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप इक्वेशन में देखो तो उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है कि इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ क्लासेस एंड दिस इज अ साइन ऑफ समेशन, एंड j is representing basically output vector जिसको हमने for example 1 ले लिया, and then we are having the exponential of input vector. ऊपर हमारे पास exponential of input vector as a numerator, and then the multiplicand or the dot magnitude of this summation, yes जिसका हमें summation निकालना है वो हमारे पास output vector क्या है, ये exponential है. तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि अभी हम शायद जल्दी से यूज ना करें या यूज कर लें. दिस इज द एंड ऑफ इंटायर एक्टिवेशन फंक्शन. अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देखेंगे न्यूरल नेटवर्क्स का. जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग देख लें बिफोर 9:20. सो लेट मी नो कि यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई हूँ. बनाई मैंने आधे घंटे की वर्कशॉप थी लेकिन वो इतनी लंबी गई है. इनपुट लेयर में कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है, इफ देन विच वन, इट्स ऑल अपॉन अस. वो आगे जाके हम देखेंगे जब हम लेंस की को जब लेयर्स को हम डेंस कर रहे होंगे ना, तो फिर मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन में दिखाऊंगा. अभी ऐसे बोल के ना आपको सब कुछ सर से गुजरेगा, अब समझ में नहीं आएगी, उसके बाद मैं जो भी चीज़ें समझाऊंगा. अब हम जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन करने. एक बहुत सिंपल सा आप कह लें कि रिग्रेशन बेस है. आपके पास रिग्रेशन का डाटा सेट पड़ा होगा, ठीक है. आज आपने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू रिग्रेशन पर काम करना. अगर आप क्लस्टरिंग का प्रोजेक्ट बना चुके हैं, अपने गिटहब पर डाल चुके हैं, तो आपने आप ये काम करना. सो विल सी दी रिग्रेशन. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ समझा दूं जो कि अभी हम आगे जाकर समझेंगे. यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख दी थी. द बेसिक रूल ऑफ थंब इज इफ यू रियली डोंट नो व्हाट एक्टिवेशन फंक्शन टू यूज, देन सिंपली यूज रेलू. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है मुझे, तो आप सिंपली रेलू यूज कर लें, एज इट इज अ जनरल एक्टिवेशन फंक्शन एंड इट इज यूज्ड इन मोस्ट केसेस दीज डेज, जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ. जिंदगी में ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस मिलते हैं जब नहीं समझ में आ रहा. इफ योर आउटपुट इज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, देन सिग्मॉइड फंक्शन इज वेरी नेचुरल चॉइस फॉर आउटपुट लेयर. सिग्मॉइड भी है और हेविसाइड भी है. आपको अगर 0 और 1 की वैल्यू चाहिए देन यू कैन यूज बोथ. लेकिन सिग्मॉइड यूजुअली हिडन लेयर में भी हिडन लेयर ज़्यादा यूज होता है. So you can use heaviside for output layer depending on what you are getting better accuracy. Change करके देखते रहना पड़ेगा आपको. Then we are having a footnote. The activation function does the non-linear transformation to the input, making it capable to learn and perform more complex tasks. ये वही वाली बात हो गई जब एक थोड़ी देर पहले स्टूडेंट बोल रहा था कि अगर एक्टिवेशन फंक्शन में डाटा लेने आ रहा है तो समझ में नहीं आई. So now I will explain. हमारे पास जब डाटा लेने आता है ना, तो हम उसको नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं. क्यों कर रहे होते हैं? टू मेक आउट या लेट इट आउट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स हिडन इन दैट डाटा. दैट इज व्हाई इट्स यूजुअली यूज्ड इन हिडन लेयर्स. हमारे पास बिल्कुल जो इनपुट आउटपुट होता है उसमें
हम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे होते, हम कम्प्लेक्स एक्टिवेशन फंक्शन जो डाटा को नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा हो उसको हम हिडन लेयर में परफॉर्म कर रहे होते हैं, विच कैन परफॉर्म मोर कम्प्लेक्स टास्क एज वेल। सो ऑल राइट, अच्छा इससे पहले अयान का भी एक क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन कहाँ लगाना है। अयान, ये जो मिस्ट्री है ना, ये एक दिन की मिस्ट्री नहीं है, ये सालों की मिस्ट्री होती है, तो ये एकदम समझ में नहीं आएगा। आज सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, कौन सा फंक्शन कहाँ लगाना है। जब तक हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। अभी हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आई है, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तब हम देखेंगे। प्रॉब्लम से मुराद जब हमारे पास डाटा होगा, डाटा के ऊपर हम लोग ट्रेन करते वक्त देखेंगे अब इस पर कौन सा लगाना, तो उस प्रैक्टिस में आप लोग समझेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझो कि कौन सा ट्यूशन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। चाहो तो उसके बारे में कुछ पेपर्स पढ़ लो, विकीपीडिया पे इत्तेफाक से बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है अकॉर्डिंग रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर फंक्शन। देयर आर और मोर फंक्शन एज वेल, लाइक ईलू, सीलू, जीलू, ठीक है ना, लीकेज बेस्ड रेलू भी होता है, तो वो भी है, लेकिन उन तक जाने की जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी सिर्फ इन मेजर फंक्शन को घर पे बैठ के पेपर से भी पढ़ना, मैं हैंडआउट्स भी शेयर कर दूंगा, कौन सा फंक्शन कहाँ लगाना है, ये आप प्रॉब्लम से बहुत जल्द सीखेंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव टूवर्ड्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हमारे पास एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, हमारे पास फीडबैक नेटवर्क है। फीड फॉरवर्ड और फीडबैक में कोई फर्क नहीं होता, ये एक नेचर है न्यूरल नेटवर्क की। अभी इस पे हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बस आप समझ लो कि दो तरह के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। एक ये होता है कि यहाँ पे इनपुट किया हमने, ठीक है, यहाँ पे इनपुट लेयर बना दी हमने, यहाँ हिडन लेयर बना दी, आउटपुट लेयर बना दी। जिस तरीके से आया ना, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हो रही है ना, वो आगे जाता जा रहा है, चाहे 1 2 3 4 5 हिडन लेयर हो, सब ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हो रहा है। हमारे पास डाटा आगे जा रहा है लेकिन पीछे नहीं आ सकता, इसमें ना ऐसा सिनेरियो नहीं है। फीडबैक में क्या होता है, डाटा हमारे पास आगे जा रहा होता है, आउटपुट अगर सही ना आ रहा हो ना, उसको इवेल्युएट करे तो उसको फीडबैक जनरेट करता है, और फिर हमारे पास दोबारा वापस रिटर्न भी हो सकता है। इट्स अ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बट लेकिन ये होती नहीं है, इट्स अ फीडबैक नेटवर्क। इसको हम बहुत आगे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स होते हैं और एक फीडबैक नेटवर्क्स होते हैं। उसके अंदर अगर हम मल्टीपल चीज़ें अगर सॉरी मल्टीपल चीज़ें अगर हम बात करें, लाइक एक्टिवेशन फंक्शन, एस्टिमेटर्स, ऑप्टिमाइजर्स, तो वो एक अंदर की चीज़ें हो गई हैं। टाइप्स हमारे पास ये दो हैं, जिससे कि हमारे पास मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज। ये भी हमारे पास उसी तरीके से टाइप्स हैं डिफरेंट नेटवर्क की, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स और फीडबैक नेटवर्क्स। ये तो आसान बात हो गई हमारी। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, लाफिज की तरफ। अब हम चलेंगे अपनी नोटबुक की तरफ। यहाँ तक किसी को सवाल हो तो प्लीज मुझसे पूछ ले। आई होप आई कैन क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल अयान, आपको इस सारे फंक्शंस के ऊपर दोबारा देखना जरूर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अभी जाइएगा मत, अगर हिम्मत खत्म होगी तो मेरे चले जाए। अभी हम एक हेलो वर्ल्ड करेंगे, हेलो वर्ल्ड 5 मिनट का भी नहीं है, एंड आई एम स्टिल इट्स स्टिल नॉट 9:20, और मैंने 9:30 तक का टाइम रखा था, लेकिन 9:22 तक हम वर्कशॉप इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। सो लेट मी शेयर यू द नोटबुक। ऑल राइट, वेरियस टीम्स, यहाँ पे मैं आपको ज़रा नोटबुक शेयर कर दूँ, और किस तरह शेयर होगी, सिंपली स्टॉप शेयर करा, एंड देन आई हैव डन द शेयरिंग ऑफ। ऑल राइट, शेयर हो चुकी है, खुद ही शेयर हो गई। फीड फॉरवर्ड में दो आउटपुट कैसे, ये क्या 1 और 0 देता है, ये सब समझेंगे। यार टेंशन नहीं लो, हम सब देखेंगे। ये जस्ट एक फॉर एग्जांपल था। अगर आप यहाँ पे देख लो न्यूरल नेटवर्क्स, अगर आप सिंपल लिखो फीड, बाय द वे आई लव द एंथुसियाज्म ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हर तरह की चीज़ें सवालात करते हैं, करने चाहिए। ट्रेनर का जितना ट्रेनर से जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ। तो कहीं पे आपको 3 4 आउटपुट लेयर भी मिलेंगी, कहीं पे आपको 3 आउटपुट लेयर भी मिलेंगी, और इससे क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे होंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। कहीं पे आपको बिल्कुल एक भी मिल रही होंगी। और अगर हम देखें फीडबैक न्यूरल नेटवर्क्स, तो आपको
2 भी मिल सकती हैं, देखा आपने यहाँ पे आपको 2 भी मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको 3 भी मिल सकती हैं, ये सब में फीडबैक परफॉर्म हो रहा है, 1 भी मिल सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं है, ये कोई डिफाइन नहीं कर रहा, बस फीडबैक में ये हो रहा है कि आउटपुट पे आने के बाद वो इवेल्युएट करता है, ठीक हो गया, और कुछ नहीं हो रहा। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू माय रिपोजिटरी हियर, और दिल करे अगर लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सो प्लीज गिव इट अ स्टार हियर एंड देन वेट फॉर अ सेकेंड। बिल्कुल लास्ट में 20 डे का हमारे पास एक वो होगी, स्लाइड्स में डाल चुका हूँ, यू कैन एक्सेस स्लाइड्स फ्रॉम हेयर इन अ पीडीएफ, 1 MB की होगी मैक्सिमम, ये यहाँ पे लोड हो जाएगी थोड़ी देर में, एंड यू कैन से हेलो टू न्यूरल नेटवर्क्स। यहाँ पे सारी थ्योरी है, कुछ भी नहीं है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, डरिएगा मत, ये सब थ्योरी है, ये तो खैर ट्रेनिंग का चल रहा है, अभी हम देखेंगे कि ये है क्या। ये यहाँ पे लंबी दिख रही है, लेकिन अभी नोटबुक में इतनी लंबी नहीं दिखेगी। ओके, अब जब भी आप लोग न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म करें ना, अगर आपको ये बोल भी रहा हो ना कि भाई आप मेरा ग्राफिक कार्ड यूज नहीं कर रहे हो लेकिन ज़ाया कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि भाई आप चेंज रन टाइम करके यहाँ से रन टाइम जीपीयू पे कर दें, उससे होगा ये आपकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी। नाउ इट विल री एलोकेट द सिस्टम। यहाँ थ्योरी मैंने इतनी लिख दी है कि अगर कोई चला भी जाए या अटक जाए तो आराम से समझ सकता है। इट विल टेक सम टाइम इन कनेक्शन, हम तब तक समझते हैं। भाई यहाँ पे हमने टेंसरफ्लो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी हम हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, स्केच से नहीं बनवा सकता, सॉरी फॉर दैट, और ना इतना आप लोगों का भी वो होगा, कैपेबिलिटी होगी। यहाँ पे हम टेंसरफ्लो यूज इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नमपाई इंपोर्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल डेटा जनरेट करेंगे हम थोड़ा सा, और यहाँ पे हम केरास इंपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए इंपोर्ट कर रहे हैं आगे जाकर देखते हैं। अब जरा पढ़ लेते हैं हम यहाँ क्या कह रहे हैं। वी आर डिफाइनिंग एंड कंपाइलिंग द न्यूरल नेटवर्क। अब ये जो है ना केरास सिक्वेंशियल, ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये बेसिकली वही न्यूरल नेटवर्क जो हम यहाँ पे बना रहे थे, यहाँ पे हमने कंपाइल कर दिया, डाटा दे दिया। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क के हिडन लेयर के साथ कुछ नहीं बना रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिक्वेंशियल लेयर बना रहे हैं। एक लेयर होगी हमारे पास, अब पहले इसको रन कर लेते हैं। डायरेक्ट मैंने पहले मॉडल ट्रेन करा दिया, इसके अंदर हम एक चीज़ मेंशन कर दूं। ऑलराइट, तो भाई हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमारे पास जो डाटा आएगा वो इनपुट शेड किस में होगा, 1 में होगा, मतलब हमारे पास सिंगल वैल्यूज आ रही होगी, कोई एरे नहीं है, कोई शेप ऐसी बड़ी नहीं है, तो ये इस सिनेरियो के हिसाब से हमारे पास वैल्यूज आ रही होंगी। फिर हमने क्या डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास यूनिट 1, मतलब हमारे पास फर्स्ट लेयर में इनपुट का एक ही यूनिट है, एक ही न्यूरॉन है, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है हमको, हमारे पास एक ही न्यूरॉन है जो हमारे पास फर्स्ट लेयर में, जो डेंसिटी के अंदर हम बात करें, ज़्यादा लेयर हम यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही लेयर यूज़ करेंगे हम, जो एज एन इनपुट आउटपुट काम कर रही होगी बाय यूजिंग केरास सिक्वेंशियल। इसमें हमने एक ही लेयर स्पेसिफाई की है, ठीक है ना, विच हैज़ 1 न्यूरॉन। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही लेयर है, 1 न्यूरॉन। अब आप लोगों का सवाल ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे तो आपने कहा था कि इनपुट आउटपुट होगी, उसके बीच में हिडन भी होगी, बिल्कुल होगी। अभी हम लोग इनपुट, हम सब एक लेयर काउंट कर रहे हैं, उस एक लेयर के अंदर सारी परफॉर्मेंस हो रही है। अब जब हम इनपुट लेयर लेते हैं उस पर भी तो एक्टिवेशन फंक्शन होता है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके का डाटा जनरेट कर रहा होता है, तो बस वो एक ही लेयर है, और हमारा जो डाटा है ना उसके लिए एक लेयर बहुत है, उसके हिसाब से डाटा आराम से जनरेट कर देगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या हो रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें लिख दी हैं मैंने, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैंने थोड़ा सा ऑप्टिमाइजर के बारे में भी लिख दिया, किसी को पढ़ने का शौक हो तो पढ़ ले, इट विल बी गुड फॉर हिम एज वेल। देन यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे SGD स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और लॉस यूज कर रहा है मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर अगर आपको याद हो तो हमने लीनियर रिग्रेशन में परफॉर्म किया था, तो यहाँ पे हम वही लॉस अप्लाई कर रहे हैं। लॉस से क्या होगा, हमारे पास लॉस फंक्शन हमें बता रहा होगा कि उस फंक्शन के थ्रू कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी अचीव हो रही है। जब हमारे पास ये 0 पे पहुंच जाएगा ना, जैसे यहाँ पे 0 पे आ गया, तो इट मीन्स हमारा एक्यूरेसी 100 पे आ चुकी है। इससे हमें ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमें कितने ईपॉक यूज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि 200 ईपॉक के बाद अब वापस से ना एरर जनरेट होना शुरू हो गया, बड़ा होना शुरू हो गया, मीन्स आपका डाटा ओवरफिट हो गया, तो वहां पर आके हमें इतना ज़्यादा ईपॉक यूज नहीं करने होते, हम ईपॉक को चेंज कर देंगे। ऑलराइट, तो अगर आपको समझना हो वैसे खुद से तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिकली ये क्लास होगी regarding loss functions and optimizer function as well. By the way, right now I'm not explaining what is optimizer or what is you can say loss function, क्योंकि अभी आप लोग
डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन हो तो पूछते जाइएगा। जैसे आपने कहा हिडन लेयर 5 से 6 हो सकती हैं, तो बेस्ड ओके यार भाई, हर हिडन लेयर के हर न्यूरॉन पे डिफरेंट बेस ऑफ वेट वेट चल रहा होगा। अच्छा, वैसे जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पे वेट 1 और 0 हो, कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 0 और 1 प्रिडिक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम सिंपल एक सिंपल जो होती है ना फंक्शन, यहाँ पे हम कोई मेथड अप्लाई नहीं कर रहे। मेथड होता है ना, यहाँ पे हम बोलते हैं कि मेथड, यहाँ इस तरह लिखते हैं, बता रहा हूँ मैं किस तरह लिखते हैं। मेथड लिख दिया हमने, ये क्या आ गया मेरे सामने, ये देखो बता भी रहा आपके पास एक्टिवेशन नन, यूज बायस टू, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम आगे जाके हम देखेंगे, बैच रेगुलराइजेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। होता क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ना कि भाई मेथड अप्लाई कर दो आप सिग्मॉइड, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अब ये हम वो काम नहीं कर रहे। अभी हमने सिंपल एक लेयर बना दी है, ठीक है, सिंपल लेयर है, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ पे इनपुट शेप बंद बता दिया कि भाई डाटा को अब शेप फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है ना, खुद ही झेल लेगा उसको ये, और एक न्यूरॉन बना दिए एक सिंगल लेयर के अंदर। Ali Raza, I will answer your question. Please don't replicate your question so much. I will answer question at the end. I have read that. All right, no issue, Raza. Ali Raza, no issue. अगर multiple questions आ गए हैं, so no worries. ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने एक लेयर डेवलप कर दी है। अब यहाँ पे हमने बोल दिया टेरास, सॉरी केरास डॉट सिक्वेंशियल, और फिर हमने बोल दिया केरास डॉट लेयर डॉट डेंस। दिस इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ आवर यू कैन से लेयर जो हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। इसको घूमने की जरूरत नहीं है कि कौन सी लेयर डेवलप कर रहे हैं, बस इसको यहाँ तक छोड़ दें कि हमने यहाँ पे एक लेयर बनाई है, क्योंकि अभी हम न्यूरल नेटवर्क्स नहीं पढ़ रहे। मैं जैसे आपको कमाल दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको परफॉर्म ना भी करेंगे ना तो आप कुछ लूज नहीं करेंगे। मैं जैसे आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क किस तरह से दिखते हैं। तो यहाँ पे हमने केरास डॉट लेयर्स की डेंस लेयर हमने यूज कर ली है। डोंट स्पेंड ब्रेन ऑन दिस, एग्जॉस्ट मत होइएगा। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, ऑल राइट, लेट्स रन दिस, टेकिंग अ बिट टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हैं टाइम लग रहा है। अब ये एक लेयर जनरेट कर रहा है, एक लेयर को जनरेट करने में भी कितना टाइम लगा है। देन आई एम गोना कंपाइल द मॉडल। ये मॉडल फिट नहीं हो रहा, ये मॉडल कंपाइल हो रहा है कि भाई कौन सा ऑप्टिमाइजर फंक्शन यूज करना है और कौन सा लॉस फंक्शन यूज करना है। लीव एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं सब पाइपलाइन दिखा रहा हूँ। जिस तरह फर्स्ट वर्कशॉप के अंदर मैंने मशीन लर्निंग बताई थी और एक पाइपलाइन बताई थी ना कि मशीन लर्निंग की पाइपलाइन क्या होती है, तो मैं ये न्यूरल नेटवर्क की पाइपलाइन बता रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा सो डोंट वरी, ये पाइपलाइन है। देन आई हैव गिवन दी डाटा, ठीक है ना। अब ये तो पहले से प्री प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने एक नंपायर है बना दी है, जो हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल वैसे मैंने मेंशन कर दिया कौन कौन सी इक्वेशन है, लेकिन हमें नहीं फॉर एग्जाम्पल पता कि कौन कौन सी इक्वेशन के हिसाब से चल रही हैं। और वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, और कितनी कम वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब इन कम वैल्यूज के लिए 1 न्यूरॉन भी बहुत है। यहाँ में कर दिया डाटा स्पेसिफाई, एक्स के अंदर भी डाटा आ गया हमारे पास, और वाई के अंदर भी डाटा हमारे पास आ गया। नाउ वी विल अप्लाई मॉडल डॉट फिट। अब जो हमने न्यूरल नेटवर्क खुद से बनाया, जो हमने मशीन लर्निंग मॉडल खुद से बनाया है बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स, हम उसको यहाँ पे फिट करेंगे। ये समझने की जरूरत है आज कि हमने यहाँ पे एक्स डाला, वाई डाला, व्हाट इज इपॉक। इपॉक द नंबर ऑफ टाइम इट्स गोइंग टू ट्रेन। आप 500 डाल देंगे तो ये 500 टाइम्स ट्रेन होगा, और एक वक्त आएगा कि लॉस हमारे पास बिल्कुल कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, लॉस 83.68 आ रहा है, पे 65.85 आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा वैल्यू, हमारी वैल्यूज के अंदर बहुत ज्यादा गैप था एक्यूरेसी के दरमियान। ये लॉस है, इट मींस नेगेटिव ऑफ द एक्यूरेसी, एनिमी ऑफ द एक्यूरेसी। इसको जीरो के करीब आना चाहिए। सो नाउ इफ आई रन दिस, सो इट विल टेक सम टाइम। अभी हालांकि छोटा सा है, लेकिन इसमें भी आप देखो 29 हो गया, थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है। अब चल रहा है थोड़ा तेजी से। तो ये टाइम वैसे ओरिजिनली ना बहुत टाइम लेता है, ये 6 उसके ऊपर सिर्फ 500 कोर्स को इतना टाइम ले लिया है। कंप्यूटर विजन सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊपर ही बहुत टाइम लेगा। अब देख रहे हो ये लाइंस आ रही है हमारे पास,
आने दें, सारे हमारे पास टेस्टिंग हो रही है। तो हमारी 3 डिफॉक्स हो गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एरर कितना रिड्यूस हो गया है। इधर देख रहे हो कि बिल्कुल नेगेटिव पे चला गया हमारे पास एरर। अभी हम ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग का कंसेप्ट को इग्नोर करते हुए देख रहे हैं कि एरर हमारे पास रिड्यूस हो गया, और एक पॉइंट आया कि एरर वापस बढ़ना भी शुरू हो गया है, वापस बंद हो गया। पहले 6 था आई गेस, बल्कि नहीं कम हुआ, सॉरी, पावर डिक्रीज हो रही है। पहले पावर -4 थी, अब -6 हो गई है। ऑल राइट, सो होने वाला है, ट्रेन खत्म हो गया ऑलमोस्ट। 500 इपॉक्स पूरे हो गए हैं इसके। ऑल राइट, तो ये इसके हमारे 500 इपॉक्स पूरे हो गए। एट द एंड हमारे पास लॉस फंक्शन कितना कम आ गया। यूजुअली हमारे पास ये एक मशीन लर्निंग के मॉडल में, लीनियर रिग्रेशन में, इतना एक्यूरेट कभी भी नहीं आता जितना एक्यूरेट इसके अंदर आ रहा है। इतना कम लॉस फंक्शन हमारे पास मौजूद है। नाउ वी सिंपली परफॉर्म द प्रिडिक्शन हेयर। यहाँ पे हमने एरे एरे में ट्रांसफॉर्म करना है वैल्यूज को, एरे में प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे डब्बे में देंगे वैल्यूज को ना, स्क्वायर ब्रैकेट। अब 10 वैल्यू गिवन करने पे हमें वैल्यूज दे रहा है 30.99, जबकि वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे रफ करता हूँ थोड़ा सा। हमारी जो इक्वेशन थी ना, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे डाटा जनरेट किया है, लेट मी शो यू अबव। ये इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास डाटा की, यहाँ सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लिएगा आराम से। ये गूगल की वैसे ऑफिशियल कोड लैब भी है, इससे थोड़ी और बेहतर हो शायद। ये हमारी इक्वेशन ये थी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हमारी इक्वेशन ना ये थी, ये हमारी इक्वेशन थी। जो हमारे डेटा के अंदर बनी हुई थी, इसमें कोई खास नॉइस भी नहीं था, और हमें इसको भी देखने की जरूरत ही नहीं है। अब कितना अच्छा से प्रिडिक्ट करा है कि इसने क्या करा। हमने इनपुट दिया 10, अगर हम इक्वेशन से सॉल्व करें तो 3 × 10 क्या हुआ हमारे पास, 3 × 10 हो गया 30, और 30 में जब अपने +1 किया हमारे पास क्या हुआ, 31 हो गया। तो इसे 30.9995 कर दिया। अगर आप इसके ऊपर सिंपली राउंड भी कर देते तो ये आराम से, मतलब आपको ना आई गेस राउंड से आराम से हो जाएगा। अब राउंड इनका अपना मेथड था, नंपा का मेथड था, मुझे याद नहीं। लेट मी यूज इट। देखा आपने, पॉइंट का एक फर्क था, आपने थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू उसने गिवन कर दिया हमारे पास, तो 31 जनरेट हुई है। तो इसको ट्राई करिएगा सिर्फ खेल कूद के लिए, और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। दिस इज जस्ट अ बेसिक पाइपलाइन। वी हैव एंडेड वन वर्कशॉप, और अब हम परफॉर्म कल बहुत सी चीज़ें करेंगे। सो परफॉर्म दिस इफ़ यू वांट, लेकिन एक्टिवेशन फंक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लिएगा। आई विल बी शेयरिंग रिसोर्सेज हियर। ऑलराइट, आई एम सर, आई एम अनेबल टू इंस्टॉल टेंसरफ्लो। उसके अप्रोप्रिएट प्रोसीजर बता दें। इतना कोई मुश्किल तो काम नहीं होता। मे बी चेकआउट के टेंसरफ्लो का कोई वो ना हो, कोई प्रीडेक्स ना हो, बट टेंसरफ्लो सिंपली आप पिप इंस्टॉल और टीएफ कर दो तो इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं टेंसरफ्लो के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यहाँ देख लेंगे, आप मिल जाएगा टेंसरफ्लो इंस्टॉल इंस्टॉल टेंसरफ्लो 2। यस, टेंसरफ्लो 2 इंस्टॉल कीजिएगा, वन मत कीजिएगा, वरना इज नाउ ओल्ड फैशन। सो यू रिक्वायर्ड पाइथन 3.5 मोर और 3.8। ठीक है ना, ये आपके पास ओके। ये कुछ पैकेजेस हम डायरेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कर लें तो थोड़ी ख्वारी हो जाएगी, तो मैं चाहूँगा आप पिप को भी अपग्रेड कर लेगा कि पिप वर्जन डाउनग्रेड ना हुआ वो। यहाँ पे पिप को कर लेगा। अच्छा, टिफ टीएफ नहीं है, सॉरी, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो है। ठीक है, एक हमारे पास होता है पिप इंस्टॉल टीएफ नाइटली। ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इससे आप मुश्किलात में पड़ जाएंगे। ये उन्हीं के लिए जो बहुत बड़े बड़े डेवलपर होते हैं, तो ये प्रीव्यू वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। आपका 2.3 इंस्टॉल होगा, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले जब अपग्रेड किया तो 2.3 वर्जन आ चुका है। सो पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो कर लेगा, हो जाएगा। ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? Yes, we have only made one neuron right now.
इपॉक्स इज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग, जितना नंबर ऑफ इपॉक डाल देंगे ना उतनी दफ़ा इटरेशंस होंगी और न्यूरल नेटवर्क पर हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा होगा. सो इपॉक इज सिंपली दैट थिंग. हाँ ये अरे हमने खुद ही दिया अपनी तरफ से, ये मैंने खुद से ज्यूम किया था कि भाई अगर x की वैल्यू 5 है तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करा 3 से प्लस 1 करके खुद से ये अरे बना दिया. आर्टिफिशियल डाटा भी तो आप खुद बना सकते हो ना यार. x की और y की वैल्यूज मैंने दे दी हैं, उसके ऊपर ये प्रेडिक्शन कर रहा है कि z की इक्वेशन क्या है. सिंपल, द मोस्ट सिंपल thing I could perform here as an hello world of neural network to showcase you pipeline. क्योंकि मेरे दिमाग में रात को आइडिया है कि I should show the code for the pipeline instead of the chart. चार्ट की तो सब दिखा देते हैं, एक बेसिक hello world कोड भी होना चाहिए. How one epoch can be defined? One epoch can be defined as number of one tier training. इपॉक जितना ज़्यादा उतनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, ज़रूरी नहीं है आपका मॉडल ज़्यादा ओवरफिट भी हो सकता है, बट मैंने कहा कि अभी हम लोग ओवरफिट और अंडरफिट के कंसेप्ट को डील नहीं कर रहे हैं. Keras and TensorFlow are the you can say TensorFlow is basically a math library, and Keras is basically a backend library or framework on which TensorFlow is mostly based. ठीक है ना. TensorFlow acquired Keras back in, don't remember the exact date. Then Google acquired TensorFlow as well. तो फिर उसके बाद ही Keras acquire किया था. तो Keras बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, TensorFlow एक मैथ लाइब्रेरी है जो C++ पे परफॉर्म हो रहे होते हैं ऑन द वेरी बैक एंड. तो ये सारा है, इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाइएगा, ऊपर ऊपर रहे बस. ये Keras और TensorFlow फ्रेमवर्क, इसके क्या क्या चीज़ें हैं ये हम जब पढ़ेंगे, जब हम लोग TensorFlow पे काम करेंगे मेनली, और जब हम काम करेंगे जब लेयर्स खुद से बना रहे होंगे, फिर आप देखेंगे दैट व्हाट इज Keras एंड व्हाट इज TensorFlow. अगर लेमन में बाकी TensorFlow इज जस्ट अ मैथ लाइब्रेरी एंड Keras इज अ, यू कैन से सर्वरलेस कंप्यूटेशन, यू कैन आप, या बैकएंड कंप्यूटेशन ऑफ न्यूरॉन्स, उसका एक फ्रेमवर्क है. 10.0 क्यों दिया है भाई? मेरी मर्जी ना, मैं कुछ भी प्रेडिक्ट कर लूँ. अब मुझे तो जरूरी थोड़ी है कि उसी में से वैल्यूज प्रेडिक्ट करूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. What will happen if we add more hidden neurons but keep the epoch low? वंडरफुल क्वेश्चन. हिडन लेयर डालने से एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा रिक्वायर करेगा. इपोक बढ़ाने से मल्टीपल टाइम्स टीयर हो रहा होगा, लेकिन जब आप प्रिडिक्शन दे रहे होगे ना, तो वो मल्टीपल इपोक थोड़ी दे रहा होगा, वो वही जनरेटेड इक्वेशन बता रहा होगा. हिडन लेयर के अंदर हमारा पैकेज फाइल जो मशीन लर्निंग का बनेगा, जो मॉडल जनरेट होगा, वो भी थोड़ा उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. तो उस सिनेरियो के अंदर हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाते. अभी ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास हिडन लेयर की कोई. एपॉक हमारा इतना ही रहेगा, 100 500 लेस देन 1000 नहीं रहेगा, बहुत रेयर हुआ कि 1000 से ऊपर जाए. ठीक है, लेकिन हिडन लेयर पे ज़्यादा काम होता है हमारा, कि हिडन लेयर हमारी जो होती है कॉम्प्लेक्सिटी को डील कर रही होती है, इसको और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में डिफाइन करके. एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? कोई भी क्वेश्चन है बता दें. आई एम गोना एंड माय क्लास सून, माय थ्रोट इज टाइट, आई एम टाइट टू. अब 10.0 यहाँ क्यों दी है, इसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से, इस नोटबुक को, इससे मिलती जुलती कोई और नोटबुक बनाइएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमने जो डाटा दिया था ना, वो बेसिकली कैलकुलेट ही इस तरह के ओके हो रहा है. फॉर एग्जांपल 0 को मल्टीप्लाई x से, सॉरी 0 को मल्टीप्लाई करें 3 से, मतलब अगर y इक्वल टू 3x प्लस 1 है यहाँ लिखा हुआ है, तो 0 को मल्टीप्लाई करें 3 से और उसमें प्लस 1 करें तो हमारे पास y1 हो गया. 1 को मल्टीप्लाई 3 से और फिर उसमें प्लस 1 करें तो y4 हो गया. और यहाँ पर हमारे पास 4 तक वैल्यू चल रही है. मैंने डायरेक्टली फिर 10 की वैल्यूज दे दी, 10 वैल्यू दे दी है कि भाई चेक करो कि इस इक्वेशन के करीब करीब तक आता है, जो कि हमारी इक्वेशन ये थी. तो हमारी वैल्यू जो थी 30.9998 तक आ रही थी राउंड उसके, तो एग्जैक्ट वही आंसर आ गया हमारे पास 31. So that's the entire case. I hope you have learned many things today और अब एग्जॉस्ट ना हो. So we're gonna end the class today. All right, we'll see you tomorrow with some more complex topics. Make sure you have learned everything today. Bye bye.